What do you mean by integration? Integration means to add. Okay, what are you adding here? Means functions. Okay, so we are adding, let us say, I'm drawing a graph here. Okay, just clearing the canvas. Okay. So I have, let us say, a graph. Okay, a graph like this, and let us say this is f of x. Okay, so this is y is equal to f of x. This is x. Okay, so I basically cut this graphs into small parts. Okay, fine. Okay, and let us say that each part is of length dx, correct? Each part on the x-axis, if you basically project it, it is of the length dx. Okay, so I am saying that this area, this rectangular area, is what? If I take a small rectangle, then what is this? This area is f of x into dx. Correct? Yes or no? Yes. So if I have to find this whole area, I'm not going much into the detail. I'm not going too much into derivation because this is a crash course, as I said. Okay. So this f of x dx ko, agar main, like, I take it into, like, let us say there are, like, say 100 intervals of d of x. Okay. So I say f of x into dx1, dx2. ठीक है, मतलब dx2 में जो मेरा f of x रहेगा वो मैं वो लूंगा. ठीक है. So let us say dx1 जो इंटरवल है वहां मेरा f of x1 है, यहाँ पे मेरा x2 है. ठीक है, मेरा f of x3 into dx3 है. So if I do this multiple times, let us say 100 times from x1 to x100, okay, so I can simply say that integration f of x dx is equal to from, let us say, x1 to x100, okay, that is the limit of this dx, okay, is equal to f of x1 dx1, okay, plus f of x2 dx2, okay, dot f of x100 into dx100. Okay. So this is basically your integration, or the integral, or the integration means what? Integration means basically this complete area that it is covering from this curve, okay, till this x-axis. Okay. So definitely it is based on कि अगर suppose मेरा f of x यहाँ पे है, ठीक है, like below the negative one, then what will be the area? ये एरिया जो है ये मेरा पॉजिटिव है, ओके, और ये जो एरिया है ये मेरा शायद नेगेटिव आ सकता है. नेगेटिव, हाँ, ठीक है. So integration is क्या है? Just it is opposite of what? Opposite of derivation. Differentiation. Opposite of derivation or opposite of differentiation. So yes. So if I have f of x dx, okay, integration is equal to like g of y, correct? Or some g of x. This will be some g of x, right? So f of x is equal to d by dx of g of x. ठीक है? Fine. ये तो पता ही है, right? Okay. So on the basis of this, they have derived the formulas, some general formulas for your some elementary functions. Okay. So integration x raised to n dx is equal to x raised to n plus 1 by n plus 1 plus c. Why do we add this constant c? Manas, why do we add this constant c? मतलब एक डिफरेंशिएशन करते तो नंबर एक बच जाता है ना, तो उसको मतलब ऐसा मैंने सुना था कि वो पता नहीं होता कौन सा नंबर, इसलिए कांस्टेंट लिख लेते हैं.
इंटीग्रेशन। कांस्टेंट लिख लेते, ठीक है। हाँ Fine. हाँ हाँ। And so similarly, there are some problems. I think you have covered this in your 11th and 12th board preparation, right? Your 12th board preparation में ये सब हो चुका है, basic formulas. I guess we need not do हाँ। this, repeat these formulas again. But हम्म, just to revise, a raised to x dx का integration is a raised to x by log x log a, correct? ओके ओके। हाँ हाँ Fine. ओके। Similarly, e हम्म, raised to x dx का integration क्या है? e raised to x की है, fine. हाँ And yes। so ये थोड़े से जो फॉर्मूला है ये हमको हम्म, रिवाइज करने हैं या फिर आपको रिवाइज करने हैं फॉर आवर एग्जाम प्रिपरेशन। हम्म, ओके, दीज आर द बेसिक प्रॉब्लम्स दैट इसके बेसिस पर इंटीग्रेशन का चैप्टर बेस्ड है, राइट? हाँ सो आई गेस यू आर थरो विद दिस। आपको कोई प्रॉब्लम है ये समझने में? नहीं। ओके, तो जैसे d by dx of sin x is equal to cos x, right? So integration of cos x is what? Sin x, correct? sin x, yes। So integration of cos x is sin x and integration of sin x is minus cos x, ठीक है? माइनस cos x। सिमिलरली ये यहाँ पे जो है अलग अलग टाइप के फॉर्मूले दिए हैं एंड देयर आर सम थ्योरम्स, ठीक है? अगर सपोज देयर आर टू फंक्शंस f of x plus g of x into d of dx, then we simply write it as f of x dx plus d of x dx. Similarly, theorem number 2, okay, and similarly theorem number 3. If there is some constant into f of x dx, then we can take that constant outside and simply integrate f of x with respect to d of x. Okay? Yes. Yeah. So you're obviously not going to go into the proofs. Okay? I'm going to leave the solved examples to you. Okay? Solved examples काफी simple है, okay? State board के book में, and these are up to you. Since you have done your education in CBSE, I guess ये आपके लिए इतना difficult नहीं होगा, ठीक है? Yes. I'm leaving this exercise 3.1 to you. It is a quite very simple exercise, ठीक है? अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं, okay? Now we are directly going to jump to the methods of integration. There are 3 standard methods of integration, okay? 3 standard methods of integration. Integration by substitution is one, integration by parts, and integration by partial fraction. Okay? Integration by substitution is the most widely used method. मतलब जिस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं बेसिकली हमारे पास में, so we use integration by substitution the most. Okay? And then जैसे ही हमारे पास में कोई प्रॉब्लम आता है, so we first try to substitute कि कुछ सब्स्टिट्यूट करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है क्या, ठीक है? Then we come to integration by parts. So firstly we are trying to see कि integration by substitution होता क्या है, okay? So if we have, let us say, a function f of x dx, and let us say this x is some phi of t, okay, and then dx has to be some phi dash t, fine? तो ये काफी सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं. एग्जांपल उन्होंने ले रखा है sin of x cube, so we take x cube is equal to t, 3x square dx is equal to t, and we get sin t dt minus cos t or minus cos x cube. Yes. C. Okay. And so अभी ये corollary 1 and corollary 2 and corollary 3 ये 3 चीजें उन्होंने दी हुई है, ठीक है? So if we have f of ax plus b है, तो we get g of ax plus b by 1 by a into 1 by a plus c. ये हमने देखा है, राइट? sin of ax plus b का इंटीग्रेशन उन्होंने ऊपर फॉर्मूले में ऐसे ही दिया हुआ है, राइट? ऐसा ही दिया है ना उन्होंने, है कि नहीं? cos sin ax plus b का इंटीग्रेशन ऐसा दिया हुआ है, ठीक है? sec square ax plus b का इंटीग्रेशन ऐसा दिया हुआ है. So instead of x there is ax plus b, तो तब जाके ये ऐसा इंटीग्रेशन आता है, करेक्ट? यस, कोई डाउट नहीं है इसमें, राइट? काफी सिंपल चीज है, ठीक है? corollary 2 देखो यहाँ पे इट इज ऑफ द फॉर्म की भैया मेरे पास में f of x raised to n है into f dash x dx इस फॉर्म में है. So I can simply say f of x as some t and then
I'll get f dash x dx is equal to dt and this is simple. फिर ये ऐसा टाइप का आता है, करेक्ट है कि नहीं? हाँ तो अब यहाँ पे देखो साइन इनवर्स x अगर मैंने t ले लिया, ठीक है, अगर मैंने साइन इनवर्स t ले लिया, सो 1 by under root 1 minus x square is equal to dx is equal to dt आ जाएगा. I'll have t cube dt, fine, and yes and we'll get the answer as t raised to 4 by 4, correct? हाँ So वैसे ही सिमिलरली उन्होंने cos x का भी डिराइव किया हुआ है, ठीक है, लाइक सॉरी cot x का भी उन्होंने ऐसे ही डिराइव किया हुआ है इंटीग्रेशन, ओके, एंड दे मतलब दिस इज जस्ट स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट? वी नो अगर सपोज हमारे पास में कोई भी फंक्शन ऐसा है कि इट कैन बी यू नो डिस्ट्रीब्यूटेड इन दैट फॉर्म दैट f of x और कुछ भी हो सकता है, and we are able to separate that f dash x dx, fine, they can use this method, okay? ये जितना Yes. सिंपल है उतने ही कॉम्प्लेक्स इसके प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, हाँ इतने ही कॉम्प्लेक्स उसके प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है? तो yes कॉम्प्लेक्स बोले तो क्या है? इट इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस दैट यू विल बी एबल टू गेट इट, राइट? अगर सपोज यहाँ पे tan x का इंटीग्रेशन पूछा है, ठीक है, सो आई कैन टेक cos x as t then minus sin x dx as dt, बट यहाँ पे ऊपर sin x है तो आई जस्ट टेक द माइनस आउटसाइड, राइट? I just take the minus outside. Yes. I get minus log cos x or log sec x plus c. है कि नहीं? मतलब सिंपल है, ऐसा कुछ जितना तुम कॉम्प्लिकेट करोगे तो वो उतना कॉम्प्लिकेट होगा. अगर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है तो एक चीज करना है, प्रैक्टिस करना है, राइट? है कि नहीं? यू हैव टू पुट द पेन ऑन पेपर, करेक्ट? yes Okay. So how do we get this? Sec x का इंटीग्रेशन कैसे कर रहे हो बोलो? So they are substituting, they are multiplying bit by sec x tan x and they are dividing by sec x tan x, okay? Sec x plus tan x, fine. And they are saying that d by dx of sec x plus tan x is the numerator, correct? So it है कि नहीं? The यहाँ पे yes the d by dx of sec x plus tan x is sec x tan x plus x square x. That is how they are getting yes right? वैसे ही cosec x का, ठीक है? So what they are doing here? They are multiplying it by cosec x minus cot x से multiply कर रहे हैं यहाँ पे, and नीचे भी वही कर रहे हैं, ठीक है? Divide. So they have not given the direct solution to us. उन्होंने बोला है कि जैसे हमने यहाँ पे ये multiplying factor find out किया है sec x plus tan x, you have to write that multiplying factor here and then you verify the solution, ठीक है? समझो? yes Okay. yes Okay. Solved example. Now यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग? माइनस that log x equal to t. मैं solved example 1 ले रहा हूँ, ठीक है? Log x equal to अगर मैंने t ले लिया, ठीक है? So I get 1 by x dx is equal to dt, fine? dt yes yes तो मुझे cot t का इंटीग्रेशन पता है, that is equal to log sin t. log sin t t की जगह में log x डाल लूँ, right? Fine? Similarly yes. अभी यहाँ पे root x. Let us say root x I have taken t, so half x raised to minus 3 by 2 is my dt, है कि नहीं? yes मैं फिर से लिख देता हूँ just to you know, नहीं तो ज्यादा ही theoretical हो जाएगा. cos root x है और upon root x है, ठीक है? So let I'm saying that root x equal to t है, ठीक है? So x raised to power half है ना, ये x raised to power half है, right? And this is t. तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हाफ x raised to power minus 3 by हाफ आएगा, माइनस हाफ आएगा, is equal to dt आएगा, करेक्ट? सो ये 1 by 2 root x is equal to dt आया, ठीक है? और हमारे पास ये 2 नहीं है, so I can just simply multiply it by 2 and divide it by 2, right? Fine? उन्होंने वैसे ही किया ना, यहाँ पे multiply and divide by 2 किया यहाँ पे, so they get here cos t dt और the integration is sin t 2 sin t plus c, ठीक है? यहाँ पे कैसे करेंगे? सिंपल है, एकदम ही सिंपल है, ठीक है? cosec x को मैं ऊपर लेके गया, it becomes sin x. yes
ये sec हाँ 8x है, dx है अपॉन cosec x है, राइट? फाइन, इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे। अब उन्होंने क्या मेथड अप्लाई किया है मैंने नहीं देखा, ठीक है। आई कैन राइट इट एज sin x and here I can write it as cos 8x dx. Fine. I take cos x as some t, so I get minus sin x dx is equal to dt, correct? So ऊपर मेरे पास में yes dt है और यहाँ पे t raised to 8 है। फाइन, so इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा? माइनस t raised to the power -7, okay, upon -8 plus 1 which is equal to -7. So the answer is 1 by, ये माइनस माइनस कट जाएगा मेरे पास में, I will get t raised to power 7 or is equal to cos raised to 7x, ठीक है। और simply I'll get 6 raised to power 7x as the answer, plus c, obviously plus c। यहाँ पे 7 है, ये 7 मैंने मिस कर दिया, ठीक है, प्लस सी, ठीक है। yes Now will you do the fifth one? I am leaving these problems to you, okay? I am leaving these problems to you. Try to solve them, okay? yes Try to solve them. थोड़ा देख लो, ठीक है, थोड़े problems देख लो। There are some, 12 problems, 12 solved problems, okay? Let us take this exercise 3.2. As I said, ये integration by substitution is the biggest thing that is there, okay? yes उन्होंने 3.2a, ठीक है, उसके बाद में आई गेस उन्होंने 3.2b एंड c ऐसा कुछ तो भी किया है, ठीक है। लेट मी चेक दैट थिंग वंस कि उन्होंने कहाँ कहाँ तक किया हुआ। 3.2b है, ठीक है, इसमें अलग टाइप का सब्स्टिट्यूशन चाहिए होता है, ठीक है। फिर 3.2 c, या सो देखो मानस, कैन यू सी हियर a b c, तीन अलग अलग टाइप के सब्स्टिट्यूशन है। देन दे स्टार्ट विद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, then they start by integration by parts, okay? फिर उसके बाद में, so when they are starting with integration by parts, you have to go through this rule. I don't know, I guess तुमको यहाँ पे आइलेट सिखाया कि लिएट सिखाया? आइलेट सिखाया है। तो आइलेट तो लॉगरिथम उन्होंने पहले ले लिया, ओके? हाँ तो लॉगरिथम उन्होंने पहले ले लिया। आई डोंट नो, मैंने भी आइलेट ही सीखा था। यहाँ पे इन्होंने लेट क्यों बोला है पता नहीं मुझे, ठीक है। सो लेट अस सी क्या है। तो ये विल यूज द स्टैंडर्ड आइलेट फॉर्मूला ओनली, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। yes बट टुडे एटलीस्ट ट्राई टू डू सम 2 or 3 problems from our 3.2a, okay? Fine. okay yes 3.2a में अगर जाता हूँ, ठीक है, can you tell me which problem should I take? seventh Sorry, seventh सेवन वाला लेना है। हाँ e raised to x sin e raised to x log sin e raised to x tan e raised to x. Sure, should I take the seventh one या कुछ Yes. और डिफरेंट वाला लेना है तुम? seventh पक्का? हाँ पक्का कि और कोई देखना है? यहाँ पे चॉइसेस बहुत है तुम्हारे पास, सिर्फ 2 ही चूज करना है तुमको। सेवेंथ और 17th 7 and 17, ओके। 17 तो काफी स्टैंडर्ड है, मैं वो नहीं ले रहा, ठीक है, मैं वो नहीं ले रहा।
इसमें सिंपली डिनोमिनेटर को अगर मैंने टी ले लिया तो न्यूमरेटर इज माय dt. ओके, देन 18th 18th में, हाँ 18th में क्या है, अगर मैं x रेस्ट टू n को t ले लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं x रेस्ट टू n को t ले लेता हूँ, सो मैं dt विल बी x रेस्ट टू n माइनस 1 n इंटू x रेस्ट टू n माइनस 1 dt. तो ये भी एकदम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है. तो यहाँ पे अंडर रूट में मेरा 1 प्लस 4t आ रहा है, ठीक है. तो ये भी काफी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, इसमें ये भी काफी सिंपल है. ट्राई टू गेट इनटू दिस सेकंड पार्ट हियर. ये वाला प्रॉब्लम देखो यहाँ. Let us say you ignore these 25 first 25 problems. Try to solve them on your own. अब I'm giving you, I'm shortening your choice. Okay? मैं तुमको बोल रहा हूँ कि ये सेकंड वाले क्वेश्चन का 1 से 70 तक मुझे 2 क्वेश्चन बताओ करने के लिए. ठीक है. फिफ्थ वन एंड फिफ्थ वन एंड 17th. नहीं तो 13th. सॉरी, 5th and 13th. 5th and 13th. Yes. 5th and 13th. Okay. So what is the fifth one? Sin x plus 2 cos x upon 3 sin x plus 4 cos x. Okay. Sin x plus क्या है? Plus 2 cos x upon यहाँ पे क्या है? 3 sin x plus 4 cos x. 3 sin x plus 4 cos x. कैसे स्टार्ट करोगे इसको? So the first question will be to you only, right? कैसे स्टार्ट करोगे? हाँ. मतलब हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं क्या? मतलब sin x अपॉन 3 sin x इसका इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x प्लस 4 cos x. हाँ, या हम लोग इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं. अलग अलग. हाँ हाँ हाँ. तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं, ठीक है. sin x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x. ओके, और यहाँ पे प्लस 2 cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x. अब बताओ अब कैसे करें? अभी अगर नहीं आ रहा है तो ठीक है, मुझे बता सकते हो कि नहीं आ रहा है, ठीक है. नहीं आ रहा है तो I'll do one thing here. मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, ठीक है. ठीक है, 5 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ठीक है. सो यहाँ पे क्या बन रहा है मेरे पास में 1/5, ठीक है, sin x अपॉन 3/5 sin x प्लस 4/5 cos x. ठीक है. I'm just ignoring this part. You can do this later, okay? And I'll just try to solve this. Then you can take this later, okay? ये तुम वैसे का वैसे solve कर सकते हो, ठीक है. Now I'm using one property here, okay? Let us say I have a sin x plus b cos x, and here a square plus b square under root is equal to 1. ये मेरे पास property है, okay? So if I have this property, okay? So how much time do I have? I have 7 minutes. So if I
if I have this is under root a square plus b square is equal to 1, second right, a is equal to some sine theta, and definitely a is also less than 1 and b is also less than 1, right? Some sine alpha, these are constants. Yes. And b is equal to some cos beta or cos alpha, right? है कि नहीं? Yes or no? Yes. Correct? Yes. Okay. So मेरे पास में I have 3/5 है मेरे पास में, 3/5 sin x है, करेक्ट? और प्लस 4/5 cos x है यहाँ पे, है कि नहीं? हाँ हाँ. एंड दिस 3/5 एंड दिस 4/5 इसका स्क्वायर लिया और उनका अंडर रूट लिया तो 1 आता है, राइट? सो दिस 9 + 16/25 ये 1 है, राइट? है कि नहीं? सो आई कैन टेक दिस 3/5 as some sin alpha and this b 4/5 as some cos alpha, है कि नहीं? हाँ. करेक्ट? फाइन. Yes. और मेरे पास न्यूमरेटर में क्या है? सॉरी, मेरे पास न्यूमरेटर में क्या है? न्यूमरेटर में I have sin x. I have sin x. So I have sin x upon, so this is some sin alpha sin x plus cos alpha cos x, right? And what is that equal to? Cos of x minus alpha, correct? है कि नहीं? Yes. एंड ये 5 मैंने वैसा का वैसा लिखा है यहाँ पे, जैसे पहले यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, तो ये 5 वैसा का वैसा लिखा है मैंने, ठीक है कि नहीं? कोई डाउट है इसमें? ओके, ठीक है. फिर अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे? अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे? इसको सपोज कर लेंगे ना. अब मैं let us say that let x minus alpha is equal to some t, so x is equal to t plus alpha, t plus alpha, right? ठीक है? and dx to dt है, राइट? तो मैं x की जगह पे t plus alpha पुट कर सकता हूँ, राइट? और नीचे में यहाँ पे cos t पुट कर सकता हूँ, राइट? so I get sin t plus alpha upon cos t dx, राइट? और ये 5 ऐसा है, ठीक है? 1/5 ऐसा है, ठीक है? सो अब ये sin t plus alpha का एक्सपेंशन मुझे पता है, sin t cos alpha plus cos t sin alpha, ठीक है? dt, dx की जगह मैं dt लिख रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है कि नहीं? ठीक. Yes. एंड दिस इज नाउ अगेन cos t है, तो मेरा है ही नीचे यहाँ पे, और यहाँ पे भी मेरा cos t है, ठीक है? यहाँ पे कट जाएगा, मैं फिर से इनको सेपरेट, फ्रैक्शन को सेपरेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, है कि नहीं? एंड दिस इज मैं इसका मुझे पता है इंटीग्रेशन, tan t का इंटीग्रेशन मुझे पता है dt, और ये तो sin अल्फा t हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है? तो ऐसा हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व. कोई डाउट है इसमें? नहीं. तो सिमिलरली तुमको ये वाला भी करना है, ये तुमको, दिस इज योर होमवर्क. यहाँ पे भी तुमको 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और उसके बाद में यहाँ पे तुम्हारा फिर से वही आएगा, cos ऑफ, नीचे cos ऑफ t माइनस अल्फा आएगा, और ऊपर मतलब cos ऑफ नीचे x माइनस अल्फा आएगा, और ऊपर cos t प्लस अल्फा आएगा. यू अगेन एक्सपांड इट लाइक दिस, जैसे यहाँ पे मैंने एक्सपांड किया इसको, sin t प्लस अल्फा एक्सपांड किया, वैसे तुम वहां पे एक्सपांड करना, देन यू कैन डू इट. ठीक है? तो डाउट है इसमें? Yes. तो डाउट है उसमें मानस? नहीं. ओके, ठीक है. ओके, अनदर क्वेश्चन दैट यू कैन डू. 13th. 13 वाला. ओके, tan 3x tan 2x dot tan x. Okay. Tan 3x tan 2x tan x. So, can you rejoin the meeting? Yes. Yeah.
सो tan 3x tan 2x tan x इसका इंटीग्रेशन करना है, tan 3x tan 2x एंड tan x, ठीक है, dx इसका इंटीग्रेशन करना है। मैं फिर से तुमको 2 मिनट देता हूँ सोचने के लिए कि कैसे करना स्टार्ट। राधा, यू कैन ऑल्सो थिंक। Yes, sir. Okay, I can write this cos 3x, cos 2x, cos x whole upon sin 3x. Okay. Sorry, I just wrote the opposite way. Okay. I just wrote the opposite way. Sin 3x, sin 2x, sin x upon cos 3x, cos 2x and cos x. ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना अभी? नहीं. I take sin 3x and sin x together. I multiply and divide by 2. I get, अब ये 2 sin a sin b के फॉर्म में है, so it becomes cos of a minus b minus cos a plus b. ठीक है, so it becomes cos 2x minus cos 3x plus x is 4x. ठीक है, and multiplied by sin 2x. इसमें कोई डाउट है? ठीक है, नहीं। एंड यहाँ पे मैं फिर से cos 3x और cos x ही लूंगा, एंड हियर आई गेट, व्हाट डू आई गेट हियर? टू cos a cos b है, so I will get cos of a plus b like 4x plus cos of 2x 4 into cos 2x. इसमें कोई डाउट है? नहीं। हेलो, नहीं. पक्का? हाँ. हाँ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, अभी क्या करना है? Okay, now what I do is I split this fraction. Okay, यहाँ पे मैं cos 2x minus cos 4x, ठीक है, cos 2x और यहाँ पे cos 4x plus cos 2x into cos 2x, ठीक, और into sin 2x dx ऐसा लिखा है, और माइनस में यहाँ पे इंटीग्रल cos 4x sin 2x dx upon cos 4x plus cos 2x into cos 2x. ठीक है, ऐसा लिखा है? कोई डाउट है अभी इसमें? नहीं. Can I take cos 2x as t? Let cos 2x is equal to t. So minus 2 sin 2x is equal to dt. करेक्ट? तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये dt आ जाएगा मेरे पास में, एंड हियर यहाँ पे t अपॉन व्हाट इज दिस 2t स्क्वायर माइनस 1 प्लस t, है कि नहीं? ऐसा ही है ना, इंटू t, और ये dt मतलब ये बेसिकली माइनस dt बाई 2 हो गया, राइट? माइनस dt अपॉन 2, है कि नहीं? sin 2x dx is minus dt upon 2, right? sin 2x
dx इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन 2 है कि नहीं? ऐसे लिखा ना मैंने, इसलिए माइनस साइन आया। हाँ ठीक है, कोई डाउट है कि इसमें? नहीं। हाँ, और यहाँ पे वैसे ही मेरा माइनस dt बाई 2, यहाँ पे 2t² माइनस 1, cos 4x को मैंने 2t² माइनस 1 लिख दिया। ठीक है, होल अपॉन सेम 2t² माइनस 1 प्लस t होल इंटू t। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नहीं। ये tt मेरा कैंसिल हो गया, सो आई गेट dt अपॉन 2t² माइनस 1 प्लस t। अब ये तो सॉल्वेबल है, राइट? अब ये जो है, ये 2t² माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे क्या है, 2t² माइनस 1 प्लस t इंटू t। इज इट सॉल्वेबल और नॉट सॉल्वेबल नाउ? यस। अब तो हो जाएगा ना? ये जो है 2t² माइनस 1 प्लस t, तो इसके फैक्टर्स में गिरा सकता हूँ। इसके फैक्टर्स कैसे आते हैं? 2t माइनस 1 इंटू t प्लस 1, करेक्ट है कि नहीं? यस। पक्का आ जाएंगे ना? फैक्टर्स गिरा आता है, राइट? ऑलरेडी। तो 2t² माइनस 1 प्लस t इज इक्वल टू 2t माइनस 1 इंटू t प्लस 1। ठीक है, सो यू हैव टू जस्ट नाउ स्प्लिट द फ्रैक्शन। स्प्लिट द फ्रैक्शन मतलब अगर सपोज तुम्हारे पास में ऊपर कुछ है ऐसा, तो a बाय लेट अस से ax प्लस t बाय ax प्लस b प्लस c बाय सॉरी q बाय dx cx प्लस d, ऐसे टाइप में है ना तुम्हारे पास में, एंड दिस इज सिंपली इंटीग्रेशन dx, करेक्ट? ये तो सॉल्वेबल है ना अभी? ये सॉल्वेबल है या नहीं है? राधा, कोई डाउट है क्या अभी? नहीं सर। हाँ, फाइन, नाउ दिस इज सॉल्वेबल, so I leave the integration to you. Can you tell me the other problem that we can do? यहाँ से 1 से लेके 17 तक of the second, this these are very important questions, sir. Let me tell you, these are very important questions. 8-1 8 1 20 plus 12 e raised to x upon 3 e raised to x plus 4. Twenty plus 12 e raised to x upon 3 e raised to x plus 4. 3 e raised to x plus 4 dx. हाँ, अब कैसे करोगे इसको? Let me take 4 कॉमन। ठीक है, 4 मैंने अगर कॉमन ले लिया, सो 3 e raised to x plus 5 dx अपॉन 3 e raised to x plus 4, ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, है कि नहीं? ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 इंटीग्रेशन 3 e raised to x plus 4 plus 1 होल अपॉन 3 e raised to x plus 4, ऐसा आ गया है मेरे पास में। ठीक है, फिर उसके बाद में I just do 4 times 1 plus 1 by 3 e raised to x plus 4 dx। ठीक है कि नहीं? इंटीग्रेशन एंड दिस इज dx सिंपल, एंड दिस होल इज इन ब्रैकेट, करेक्ट? अब इसका इंटीग्रेशन तो x ही है, अब इसका इंटीग्रेशन बताओ कैसा होता है?
How will I do it? Okay, let me do one thing here. यहाँ पे ये तो आ ही गया है मेरे पास आंसर. Okay, 4x. Let me erase this thing once. Can I multiply and divide by e raised to x? The e raised to 2x plus e raised to x 4 e raised to x. ठीक है? Fine. Now I do let e raised to x is equal to t. तो e raised to x dx is equal to dt. है कि नहीं? हाँ है कि नहीं? फिर यहाँ पे 4 ये x मैंने वैसा क्या वैसा लिखा. फिर इंटीग्रेशन dt अपॉन 3t स्क्वायर प्लस 4t. ऐसा आ गया मेरे पास में. Now is it solvable or not? Is it solvable or not? यस अब मैं फिर से फ्रैक्शन में स्प्लिट कर सकता हूँ ना इसको. प्लस इंटीग्रेशन सम a बाय t प्लस सम b बाय t प्लस 4. ऐसा स्प्लिट कर सकता हूँ मैं. है कि नहीं? है कि नहीं? एंड दिस इज सिंपली dt. तो मेरे पास a और b मुझे कोएफिशिएंट्स फाइंड करने हैं. करेक्ट? इज इट डन? प्रॉब्लम हो गया फिर खत्म. थोड़ा सा देखो, मैं भी पहली बार इस प्रॉब्लम को देख रहा था. तुम भी पहली बार देख रहे थे. बोर्ड एग्जाम तुम दे रहे हो. ठीक है, प्रिपरेशन तुम कर रहे हो. यू शुड बी टेलिंग मी द ट्रिक्स, राइट? कि सर ऐसा करते हैं वैसा करते हैं. है कि नहीं? इंस्टेड ऑफ मी टेलिंग यू, तुम लोगों ने बताना चाहिए ना मुझे कि ऐसा करते हैं वैसा करते हैं. लेट अस ट्राई दिस, लेट अस ट्राई दैट. डू यू थिंक इट इज टू डिफिकल्ट? No. Okay. So is it solvable now? Is it solvable now? Yes. Pakka? Pakka. Okay. Yeah. I'm stopping the recording now. Hello. Yes. Yeah. So some Yes. special integrals they have mentioned. Okay. These are very standard integrals. Okay. ये आपको मतलब this should be by hearted. Okay. इसमें कोई दो राय नहीं है. There are obviously ways to do it. Okay. यहाँ पे डायरेक्ट स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम लोग. x is equal to tan theta सब्स्टिट्यूट करते हैं and then we get these integrals 1 by a tan inverse x by a. Do you want me to derive any of this? Do you want me to derive any of this? और कैन यू लर्न इट? आपको लर्न करना ही है. हाँ. सो कैन वी गो अहेड? आपको मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको सारे 7 प्रॉपर्टीज याद है. ठीक है. व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड? उन्होंने बताया भी है. व्हेन यू हैव अ फंक्शन लाइक दिस यू हैव टू सब्स्टिट्यूट. ऐसे आपको सब्स्टिट्यूट करना है करके. x इज इक्वल टू a tan थीटा सब्स्टिट्यूट करना है. अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्म में है तो x इज इक्वल टू a sec थीटा सब्स्टिट्यूट करना है. अगर अंडर रूट a प्लस a माइनस x अपॉन a प्लस x है तो x इज इक्वल टू a cos थीटा सब्स्टिट्यूट करना है. They have given proof for everything here. सारे इसका उन्होंने प्रूफ दिया हुआ है. ठीक है. These are very standard derivations that they do. ठीक है. Fine. Hello. यस सर. हाँ. So they have substituted x is equal to a sec theta here. I'm taking this fifth problem now. ठीक है. देखो यहाँ पे कैसा किया है. We get a sec theta tan theta. Fine. We get then sec theta का इंटीग्रेशन. sec theta का इंटीग्रेशन इज log of sec theta plus tan theta. So sec theta का इंटीग्रेशन कैसे किया है ये हमने देखा है पहले. कल देखा था हमने.
sec theta का इंटीग्रेशन कैसे हाँ। करते हैं? So they multiplied by some 1 by sec theta tan theta ऐसा कुछ तो भी करते हैं, and then you get this integration log of sec theta plus tan theta. ठीक है, just go through them. ठीक है, हाँ। fine. Now rejoin the meeting. Okay, stopping this recording now. So whenever we have integral of the form 1 by ax square plus bx plus c, okay, or 1 by under root ax square plus bx plus c, we try to split it as a perfect square plus minus some a square, correct, or minus some a square, है कि नहीं? उसके बाद में then either we get this way x plus beta whole square minus plus minus alpha square मिलेगा, या alpha square minus x plus beta whole square ऐसा मिलेगा, right? जब ऐसा आ गया हमारे पास में, तो then either we substitute x is equal to like x plus beta is equal to some alpha tan beta whatever depending on what we have here. ठीक है, तो this is 3.2.4 method. ठीक है, we'll take some example, we'll come to know. ठीक है, 3.2.5 अगर हमने देखा यहाँ पे, if we have something like 1a sin square x plus b cos square x plus c, so we just divide the numerator and denominator by cos square x. Okay, in denominator replace sec square x by 1 plus tan square x, cos square x by 1 plus cot square x. Fine. So yes, तो ये ऐसा आया हमारे पास में, and then we get the integral of this form 1 by at square plus bt plus c. ठीक है, so 3.2.5 देखा हमने. Now when we have 3.2.6 मतलब 1 by a sin x plus b cos x plus c. ठीक है, so we use a standard substitution, t is equal to tan x by 2. If tan x by 2 is equal to t, then sec square x by 2 into half is equal to dt. ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसा आया. ओके, एंड sin x is equal to 2t by 1 plus t square, and cos x is equal to 1 minus tan square x by 2 by 1 plus tan square x by 2. ठीक है, ऐसा आता है. yes, हाँ. तो ये ऐसा करने के बाद में यहाँ पे we get something like this, और ये ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. सो आई गेस ये वाला तो एकदम स्टैंडर्ड है सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, x square plus under root 11 by 2 whole square, so we substitute and then we get of the form 1 by x square plus a square, it is 1 by a tan inverse x by a is the integration. ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें कोई डाउट है? सॉल्व एग्जांपल 1 में 2 में भी सेम किया है. ठीक है, 2 में भी सेम किया है, log of a plus x upon a minus x. ये कैसे आया था? उन्होंने सिंपली उन्होंने फ्रैक्शन स्प्लिट किया है, फ्रैक्शन उन्होंने स्प्लिट किया है. 1 by a by b plus x, मतलब a by b plus minus x plus b by a by b ऐसा स्प्लिट किया है, and then they get this a plus x by a minus x. करेक्ट है कि नहीं? These are simple derived. ठीक है, फिर ये वाला थर्ड वाला भी एक्सप्लेनेबल है, फोर्थ वाला भी एक्सप्लेनेबल है. फाइन. ठीक है, सो 3.2.4 के उन्होंने सारे एक्सप्लेनेशंस दिए हुए. ठीक है, नाउ व्हेन वी हैव समथिंग लाइक दिस, 8th वाला sin 2x upon 3 sin to the power 4x plus minus 4 sin square x plus t. Can we take sin square x as t here? Sin square x is equal to t लिया, तो ऊपर sin 2x dx we get dt. Okay, and simply we can get this thing. जरूरी नहीं है कि जो उन्होंने मेथड्स एक्सप्लेन किए हैं ऊपर उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आएगा. थोड़ा सा कभी कभी यहाँ पे तो स्टैंडर्ड सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, राइट? दिस इज नॉट ऑफ एनी स्टैंडर्ड, राइट? यहाँ पे मुझे sin square x is equal to t सब्स्टिट्यूट करना पड़ा. ठीक है, तो मुझे ऑटोमेटिकली dt मिल गया. करेक्ट, एंड आई गॉट नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म. करेक्ट है कि नहीं? यस. यहाँ पे e raised to x by 2. Okay,
So they have simplified this thing, ठीक है? उसके बाद में they have put e raised to excess some t and तो थोड़ा सा आपको यहाँ इस स्टेज तक लाना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करके आपको इस स्टेज तक ऐसे लाना पड़ेगा, देन यू कैन डू द सब्स्टिट्यूशन, राइट? है कि नहीं? यहाँ पे अभी रूट tan x प्लस cos x, x is equal to tan inverse t square, x is equal to ये, तो these are not exactly very standard methods, okay? इसमें उन्होंने अलग अलग टाइप की सब्स्टिट्यूशन करके देखे हैं, है कि नहीं? हाँ Let us take a break of 5-10 minutes. Let us be back. Okay. 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 Yeah. So just go through this 10th wala. Okay, it is a very important question. If you have understood the 11th wala, then this 12th and 13th are equally understood. ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. फाइन. यस. सो यहाँ पे जब मेरे पास में क्वाड्रेटिक आ जाता है, फाइन, जब यहाँ पे क्वाड्रेटिक आ जाता है, ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ता है मुझे? I can simply substitute divide by cos square theta. ये दिया हुआ है ना, जब 1 by a sin square x cos square x plus c के फॉर्म में है, तो we divide numerator and denominator by cos square theta, okay? And उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करने के बाद में we just substitute tan theta is equal to t and sec square theta is equal to dt, ठीक है? And here is false, ठीक है? ये दिख रहा है तुमको कॉम्प्लिकेटेड, बट इट इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है? तुमको बस प्रैक्टिस होनी चाहिए उस चीज की, ठीक है? आई गेस आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स. एक्सरसाइज भी इसी के ऊपर बेस्ड है, 3.2.b, ठीक है? प्रैक्टिस करो, ठीक है? एंड कम टू मी विद द डाउट्स, ठीक है? कम टू मी विद द, आई गेस दिस इज सिंपल. इसमें कुछ ऐसा है कि जो तुमको नहीं समझ में आएगा या नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ है? मानस, राधा? नहीं. ओके. Now we move to the next section. Okay, integration of the form px plus q by ax square plus bx plus c. हमने सिमिलर ही प्रॉब्लम अभी किया है, राइट? हमने सिमिलर ही प्रॉब्लम अभी किया था. कहाँ पे किया था? कहाँ पे किया था? यही किया है ना हमने, सिमिलर ही प्रॉब्लम किया था. हाँ. है कि नहीं? We wrote it as a by t plus b by 3t plus 4, ठीक है? And then we have to just simply find out the coefficients of a and b. Correct or not? Yes or no? है कि नहीं? ऐसे किया था ना हमने प्रॉब्लम, ठीक है? तो यही चीज ये लोग बता रहे हैं. So once you have integral of the form px plus q upon ax square plus bx plus c और px plus q upon ax square plus bx plus c, so हम लोग we do this thing, we substitute the denominator as some a into d by dx of this plus some constant b, ठीक है? And then we get b by the same denominator and this is some dt by a, है कि नहीं? dt by t, correct? Yes or no? dt by t और dt by under t, depending on ऐसा है या ऐसा है, ठीक है कि नहीं? So this is very very simple. ये तो मतलब बहुत ही सिंपल है ऐसे वाले प्रॉब्लम्स. I just expect you to go through the solved examples, ठीक है?
थोड़ा सा जब ट्रिग्नोमेट्री आता है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है अपने को, बट थोड़ा हाँ। प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। I can take one problem from exercise 3.2c. You can tell me which one to take. Radha, क्वेश्चन नंबर तो 8 8 वाला, ये तो सिंपल है ना, sin x को t ले लिया मैंने, ठीक है, तो ऊपर 3 cos x dx मतलब cos x dx dt हो जाएगा, करेक्ट, और नीचे 4t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1, सिंपल है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। हाँ क्वेश्चन हाँ। 9th 9th वाला, ओके, 9th वाला क्या है, e raised to 3x minus e raised to 2x upon e raised to x plus 1। क्वेश्चन नंबर 9 लू पक्का? हेलो मानस, यस सर। 9 लू ना, ठीक है। So integration under root e raised to 3x minus e raised to 2x upon e raised to x plus 1, ठीक है, dx ऐसा दिया है कि नहीं? Okay, यस। can I take e raised to 2x common from the top? So I take e raised to 2x common और यहाँ पे अंडर रूट e raised to x minus 1 है कि नहीं, अपॉन e raised to x plus 1, ये भी अंडर रूट में ही है पूरा, एंड dx। I can take this फिर से कॉमन, सो e raised to x हो जाएगा अंडर रूट e raised to x minus 1 upon e raised to x plus 1 dx। अब I can take e raised to x as some t, e raised to x is equal to t, तो e raised to x dx is equal to dt, ऐसा आ गया ना मेरे पास में, है कि नहीं? यस हेलो, यस यस। yes sir अंडर रूट dt इंटू मतलब अंडर रूट t माइनस 1 बाई t प्लस 1 dt, ऐसा आ गया इंटीग्रेशन, है कि नहीं? ऐसा आया ना इंटीग्रेशन, अब ये तो सिंपल हो गया राइट, अब ये तो सिंपल हो गया ना, है कि नहीं? आई कैन जस्ट डू t माइनस 1 अंडर रूट को फिर से t माइनस 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, और आई गेट अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस 1, करेक्ट, ये समझा स्टेप, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो आई गेट इज इक्वल टू t माइनस 1 अपॉन अंडर रूट t स्क्वायर माइनस 1 dt। कोई डाउट है इसमें अभी राधा? no sir हाँ, फिर आई गेट t बाय अंडर रूट t स्क्वायर माइनस 1 dt, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट t स्क्वायर माइनस 1 dt, ठीक है, ये दोनों अलग अलग इंटीग्रेशन से, करेक्ट, दोनों अलग अलग इंटीग्रेशन से I can take t square minus 1 is equal to some y, so 2t dt is equal to dy, ये सिंपल हो गया ना अब तो, है कि नहीं? सम dy by 2 होल अपॉन अंडर रूट y, और ये वाला तो है ही अपने को पता ही है ना, 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या रहता है अपने को पता है, इसका इंटीग्रेशन क्या रहता है अपने को पता है ना, है कि नहीं? हाँ। हो गया, सिंपल है, सॉल्व प्रॉब्लम, ठीक है। डाउट इसमें? नहीं। Just practice these problems, okay? Practice these problems, okay? Hello? यस Yeah. And now we are going to this integration by parts. यस सर। Integration by parts. I hope तुम्हारे मैक्सिमम कंसेप्ट्स जो तुम्हारे अभी तक क्लियर नहीं थे वो क्लियर हुए हैं। हेलो राधा, yes sir यस। कोई कंसेप्ट ऐसा है जो तुमको नहीं समझा है? नहीं sir तुमको बस प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है, लेट मी टेल यू।
they have given the theorem for this thing, integration by parts. If we have u dot v dot dx, so we do v dx first, and then d by dx of q, integration v dx. Okay. हमको ये theorem के proof में नहीं जाना है. We have something like this. हमको Eilert rule follow करते हैं, not Liet. I follow Eilert rule. I take inverse trigonometric first, then I take logarithmic, then I take trigonometric, then I take exponential. This is the preference I take for the first function. Yes. So the first function has to be chosen by the Eilert rule, not the Liet rule. I prefer the Eilert rule. Okay, I take inverse trigonometry as the first function, so it is easy for me to differentiate the inverse trigonometric function rather than the logarithmic function. Okay, Radha, कोई doubt है इसमें? नहीं सर. ठीक है, एक solved example दिया है उन्होंने. They have given another solved example like this. यहाँ पे if you encounter examples like these, example number 1 जैसा x square 5 raised to x है, तो हमको यहाँ पे बार बार like 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ सकता है. ठीक है, समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ. So अब जैसे यहाँ पे है tan inverse x dx. Okay, so I take the first function as the inverse trigonometric function I. By that Eilert rule, I have taken tan inverse x as the first function. Okay, I get 1 by 1 plus x square dx into x square by 2. और फिर उसके बाद में इसको सॉल्व करना इजी हो जाता है, राइट? है कि नहीं? इसको सॉल्व करना इजी है ना? Yes. यहाँ पे. Yes. Okay. तो थोड़ा सा कभी कभी यहाँ पे मैनिपुलेट भी करना पड़ता है अपने को. We have to multiply sometimes by the conjugate to get it in a proper integrable form. ठीक है? So they have given us many other possibilities कि कैसे कैसे कॉम्बिनेशन आ सकते हैं. राधा, यहाँ पे ये सब जो है e raised to ax sin bx, ये सब उन्होंने प्रूव रिजल्ट दिए हुए हैं. ठीक है, जस्ट गो थ्रू देम. ठीक है, ये तुम्हारा टेक्स्ट बुक है, तुमको अच्छे से आना चाहिए इसको. ठीक है, sometimes we get I on the other side also. जैसे ये अंडर रूट a square minus x square dx का इंटीग्रेशन ले रखा है इन्होंने. ठीक है, कैन वी डू इट सम अदर वे आल्सो? अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं करना है, so can we do it some other way also? हेलो, पर सर वो लेंथी हो जाएगा ना फिर ज्यादा. हाँ, just 1 minute. Okay, I am saying अंडर रूट a square minus x square है, dx है. ठीक है, ऐसा है. यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ क्या? x is equal to a sin theta किया मैं. ठीक है, so dx is equal to a cos theta d theta. Correct? I get simply integration of what? अब यहाँ पे मैंने a sin theta लिया है. करेक्ट, so I get again a. What do I get? Under root a square minus x square लिया तो a cos theta आएगा, and again dx is a cos theta d theta. Correct, so I get a square into cos square theta d theta. Correct, I can write simply this as 1 plus cos 2 theta by 2. Correct, d theta. Yes. Integration a square by 2 into theta plus sin 2 theta by 2.
ठीक है, इंटू ए स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय 2, ये मैं इंटीग्रेशन हट गया मेरा, ठीक है, प्लस सी, करेक्ट, ये मेरा इंटीग्रेशन आ गया है, फाइन, आई हैव टेकन x इज इक्वल टू a sin थीटा, करेक्ट है कि नहीं? सो थीटा इज इक्वल टू x बाय a, मतलब साइन इनवर्स x बाय a, करेक्ट, थीटा इज इक्वल टू x बाय साइन इनवर्स x बाय a, करेक्ट, एंड साइन, तो मेरा अगर सपोज साइन थीटा इज इक्वल टू x बाय a है, तो मेरा cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर रहेगा. So if you substitute the values here, यहाँ पे, so we will mostly get the same answer. Get the same answer. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? We will get the same answer यहाँ पे, ठीक है? ये आंसर और अपना आंसर बिल्कुल मैच होना चाहिए, ठीक है? ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन जो है वो दिया हुआ है ऊपर, ठीक है, एंड हियर दे हैव प्रूव्ड इट बाय कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ओके, just go through these examples, okay, just go through these examples, okay, काफी इंपॉर्टेंट है ये, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Okay, now we have basically come to the exercise 3.3. उसके बाद एक ही एक्सरसाइज बचता है, that is integration with respect to integration with partial fraction. So partial fraction is very simple, okay, partial fraction is very simple, इसमें कुछ है ही नहीं ऑलमोस्ट. समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, हाँ, Yes, sir. the end of the chapter. So 3.4 is absolutely the easiest part of this thing, ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं है अपने पास यहाँ से, ठीक है. We have to just split the fractions, find the coefficients, okay, and integrate. समझ में है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? We have to just split the fractions, okay. We have to first factorize, split the fractions, okay, and then simply integrate. This is exercise 3.4 के पहले वाली solved examples. Now I want you to yes, can you let me know कैसे करना है, कौन सा वाला क्वेश्चन करना है अभी यहाँ पे 3.3. कोई ऐसा एग्जांपल लो जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते हैं और जिसमें हमको ये करना है, क्या बोलते हैं, we have to do it by parts only. फोर्थ वन कौन सा? ये दो 3 पार्ट्स है. ओके, आई वुड प्रेफर कि तुम मुझे सेकंड और थर्ड में से कोई बताओ. थर्ड में से फोर्थ. थर्ड में से फोर्थ. ओके, राधा. Yes, sir. Third से fourth वाला ही. थर्ड से फोर्थ वाला. ओके, फाइन. x by x plus 1 whole square dot e raised to x. X by x plus 1 whole square into e raised to x dx. क्या करोगे अभी बताओ, क्या कर सकते हैं हम लोग? पहले स्प्लिट करना होगा ना x plus 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर को. x plus 1 by x plus 1 होल स्क्वायर माइनस 1 ऐसा लिख सकता हूं मैं, होल इनटू e raised to x dx, ऐसा लिखा, ठीक है. तो आई गेट ये 1 by x plus 1 मिलेगा, ठीक है, माइनस 1 by x plus 1 होल स्क्वायर मिलेगा, करेक्ट, एंड e raised to x
dx, फाइन, हाँ ठीक है. Now I have to integrate this part separately and this part separately by parts. ठीक है कि नहीं? I get e raised to x by x plus 1, ठीक है, dx minus e raised to x by x plus 1 whole square dx. ठीक है ना? ये मुझे सेपरेटली मिला यस है कि नहीं? अब मैं कैसे करूं इसको? So again, I let rule, ठीक है, इनवर्स लॉगरिथम. फिर ये a क्या है? a क्या है? अलजेब्रिक Algebraic. Then और एक्सपोनेंशियल. trigonometric and exponential, right? है कि नहीं? यस तो कैसे करना है फिर यहाँ पे? I can simply take this as the, ये मेरा algebraic function है ना? I can take this as the first function. तो e raised to x log of x plus 1, ठीक है, dx, मतलब ये dx नहीं, मैं सिर्फ इतना वाला पार्ट पहले इंटीग्रेट कर रहा हूँ बाय पार्ट्स, ठीक है, माइनस e raised to x log of x plus 1 dx. ठीक है, इसमें कोई डाउट है? नहीं. फिर उसके बाद अभी इसको कैसे इंटीग्रेट करूं मैं? यहाँ पे फिर से बाय पार्ट्स. हाँ, so okay, e raised to x log of x plus 1, ठीक है, माइनस e raised to x into log of x plus 1 dx. अब इसका बाय पार्ट्स करना है, राइट, अपने को. सो आई टेक दिस फंक्शन log of x plus 1 dx. तो फर्स्ट फंक्शन मैं लेता हूं यहाँ पे मेरा, और हैव आई डन एनी मिस्टेक हियर? मुझे अरिथमेटिक वाला जो फंक्शन था वो फर्स्ट फंक्शन लेना था, राइट, है कि नहीं? हाँ 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 एक्सप्रेशन हाँ राइट. मैंने तो गलत ले लिया ना, मैंने e raised to x को फर्स्ट फंक्शन ले लिया, राइट. तो फिर मैंने क्या लेना चाहिए? x plus 1 वाला. हाँ, सो e raised to x by x plus 1, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या रहेगा फिर इसका? log of x plus 1. इसका डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा ना, 1 by 1 x plus 1 का, है कि नहीं? अरे हाँ. सो इट विल बी प्लस 1 by x plus 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या रहेगा? ऐसा ही रहेगा ना, एंड इनटू e raised to x dx. फिर उसके बाद क्या? हेलो, उसके बाद क्या? यस. यहाँ पे e raised to x by x plus 1 होल स्क्वायर ऑलरेडी है, राइट. हाँ हाँ. ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं होगा? ये और ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा. होगा. पक्का ना? हाँ. e raised हाँ. to x. So we get the answer as e raised to x by x plus 1 as the final answer. ठीक है. Okay, so if you are getting that as the final answer, okay,
we are getting that as the final answer. I just want to verify one thing here. If we take e raised to x by x plus 1, okay, as some t, okay, so dt is equal to what? X plus 1 whole square, okay, or Yes. e raised to x, okay, into x plus 1 into x plus 1 minus e raised to x whole upon, मतलब ये u by v के फॉर्म में है, ठीक है कि नहीं? तो d by dx ऑफ u by v is equal to u dash v minus v dash u अपॉन v स्क्वायर, ऐसा ही है ना ये? तो मैं वैसे लिख रहा हूं यहाँ पे, I'm writing it as x plus 1 whole square, u dash is e raised to x, v is x plus 1, ठीक है, minus under root of v dash, what is v dash here? 1 into e raised to x, correct? Yes. मुझे क्या मिलता है? e raised to x into x upon x plus 1 whole square. So I get ultimately the same thing, right? तो मेरा dt जो है dt मुझे मिला है ना, तो मुझे dt by under root ये इंटीग्रेशन ऑफ dt मिला है कि नहीं? So I get simply t. So I get the answer is e raised to x by x plus 1. समझ में आया मैं क्या किया अभी? हाँ. Okay, next problem. Sixth one. Sixth one. E raised to 5x plus log x plus 1 by x. Okay. E raised to 5x whole into 5x dot log x plus 1 by x. 5x dot log x plus 1 by x. ऐसा दिया उन्होंने, ठीक है? Can I take let, अब मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? I take this simply ऐसे, ठीक है? वैसे मुझे ये देखना है कि ये मेरा dt आता है कि नहीं आता है, फाइन? अगर मैं इसको t लेता हूँ, ठीक है, लेट e raised to 5x log x sm t, ठीक है, तो अगर मुझे dt कैलकुलेट करना है, सो e raised to 5x by x प्लस 5 e raised to power 5x log x, ओके, है कि नहीं? हाँ. फिर इज इक्वल टू सम dt, यहाँ पे log 5 है, ठीक है, और ये log x भी है, तो आया मेरे पास कुछ, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ यहाँ पे, 5 to x log x, okay, let me do the other way, okay, 5x plus dot log x plus 1 by x. Let me not do that way, 5 to x, और यहाँ पे 5x dot log x plus 1, 5x log x plus 1 by x dx. Can you rejoin the meeting? Can you rejoin the meeting? Yes. Yeah.
recording on this computer. If I take this as some t, okay, and if I differentiate this, okay, I get e raised to 5x by x plus e raised to 5x log x into 5 as some dt. Correct? Yes or no? Yes. है ना, मुझे मिला ना ये? ओके, तो अगर सपोज ये मुझे ऐसा मिला है, ठीक है, तो फिर I can simply say this is integration of dt. This and this is same, right? Same ही है ना ये? हाँ. Correct? So अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ठीक है, so I am simply integrating dt, right? Yes. But as I said, उन्होंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पूछा है, ठीक है? They have asked us integration by parts. So we can take some other problem also. Let me know कौन सा प्रॉब्लम दूं मैं अभी यहाँ पे. Seventh वाला. Okay. So this e raised to sin inverse x by under root 1 plus x square. Fine. So I got this. Okay. यहाँ पे मैंने x is equal to sin theta ले रखा है, and I1 जो है वो मेरा e raised to sin inverse x into x by 1 minus x square है. And the other I2 that I have taken as on the next page that we'll see later, the I2 that I have taken as simply e raised to sin inverse x dx. ठीक है? So यहाँ पे फिर इसके बाद मेरा सिर्फ इतना बचा e raised plus e raised to sin inverse x dx. फिर मैंने इसका इंटीग्रेशन किया. I kept this part as it is. ये वाला पार्ट मैंने as it is रखा, ठीक है? जब इसका इंटीग्रेशन किया तो मुझे प्लस x sin इनवर्स x माइनस x बाय x sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर. ठीक है, इतना आया मेरे पास में. ठीक है, तो दिस इज आल्सो इक्वल टू I1, राइट? दिस इज आल्सो I1 ना. I1 मैंने क्या स्टार्ट किया था, यही है ना मेरा. है कि नहीं? सो सॉरी, यहाँ पे मेरा ई मिस हो गया. ठीक है, तो यही से मैंने स्टार्ट किया था. सो तो मुझे ये मिला कि 2I1 इज इक्वल टू e रेज टू sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस x sin इनवर्स x. ठीक है. फिर उसके बाद में मैंने I2 को स्टार्ट किया. I2 I start integrating. Again I followed the Eilert rule here. I took this as the first function. So I got x sin inverse x minus under root x sin inverse x upon under root 1 minus x square dx. ठीक है. Now this is again I1 only, right? ये I1 ही है ना, है कि नहीं? हाँ, I1 ही है ना ये देखो यहाँ पे मैंने I1 ले लिया था ना. ठीक है, हमारे पास में मैंने I1 और I2 क्या है तुमको समझा है ना, मैंने क्या लिया है. तो मेरा e रेज टू साइन इनवर्स x, ठीक है, यहाँ पे x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा ही है ना ये. ठीक है, लेकिन मैंने जब ये e रेज टू साइन इनवर्स x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस e रेज टू साइन इनवर्स x ऐसा लिखा है ना मैंने, है कि नहीं? तो इसको मैंने I1 लिया था, ठीक है, एंड इसको मैंने I2 लिया था. ये समझा ना मैंने क्या किया था. तो हेलो राधा. हाँ, ठीक है. तो फिर मुझे I2 जो है वो ये मिला है. I2 इज इक्वल टू x sin इनवर्स x माइनस I1 मिला. सो I2 प्लस I1 इज इक्वल टू x sin इनवर्स x मिला. तो यही तो चाहिए था ना अपने को, है कि नहीं? यही चाहिए था ना अपने को.
ठीक है? So we got the answer here. Yes. Okay. How do we do the rest of the things? Okay, फिफ्थ वाला मैंने पूछा था अभी. फिफ्थ वाला कैसे करेंगे? Integrate the following function with respect to x. क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? अगर हाँ, एक मिनट. I'm just writing the question here. x square under root a square minus x raised to power 6 dx. मुझे तो सब्स्टिट्यूशन क्या करना है ये तो मुझे समझ में आ गया है फॉर मी. ओके, नाउ यू हैव टू टेल मी क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए. अभी अगर x raised to 6 को t पुट किया तो ओके, वन मोर थिंग हियर. ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना है क्या अपने को? नहीं करना है, राइट? मुझे तो नहीं लगता है, काफी लंबा जाएगा. ठीक है, तो राधा कैन यू टेल मी व्हाट शुड आई सब्स्टिट्यूट? लेट अस से सब्स्टिट्यूट x cube is equal to t, x raised to power 6 is equal to t square, है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ. Yes. 3x square dx is equal to dt. ठीक है, सो x square dx is equal to क्या मिलता है मुझे? dt by 3 मिलता है. 1/3. Yes. So this is integration of what? dt by 3. Sorry, I just have to write a square minus t square dt by 3. Now is it solvable? Yes. फिर इसका so whenever you have the form a square minus x square का इंटीग्रेशन, so इसका इंटीग्रेशन तुमको बाय हार्ट लर्न होना ही चाहिए. ठीक है, फाइन. ठीक है, नाउ हो गया तुम्हारा बोर्ड एग्जाम सब खत्म हो गया. अब तक अगर लर्न नहीं है तो कब करोगे बताओ मुझे. अभी एग्जाम आने वाली है 2 दिन में, तो कब तक करोगे तुम लर्न इसको? Why have you not learned it till now? Radha, tell me what is the answer? इसका इंटीग्रेशन क्या है बताओ मुझे. पूरा याद नहीं आ रहा पर कुछ साइन इनवर्स से रिलेटेड ही था. साइन इनवर्स t by a ऐसा कुछ तो भी था. नहीं, ऐसा कुछ तो भी नहीं चलता है ना. ऐसा कुछ तो भी नहीं चलता है. we have to go back. Okay, we have to see क्या है इसका आंसर. Okay, the answer should be x by 2 dot a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a. now इंटीग्रेशन बाय पार्ट से किया था उन्होंने. ठीक है, नाउ go back to the standard formula that they have derived previously. Okay, let us I'm just going back there. वहां पे उन्होंने क्या दिया हुआ है? they have given the same thing only. मतलब उन्होंने कुछ अलग नहीं दिया है. I'm just telling you that you people have to, अगर सपोज तुम टाइम पे डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है, if you are not able to derive on time, you have to learn. ठीक है कि नहीं? Yes. उन्होंने सीधा सीधा बोला है you have to substitute it this way. अगर a square minus x square फंक्शन है, you have to substitute x is equal to a sin theta. correct? yes or no? Yes. हाँ. so उन्होंने यहाँ पे उसका डेरिवेशन नहीं दिया हुआ है. ठीक है, बट द पॉइंट इज दैट अगर सपोज ऐसा कुछ आता है, फाइन, सो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वे. ठीक है. हाँ, आई एम अगेन एंड अगेन आस्किंग यू पीपल, क्या ऐसा है जो नहीं समझा? वी आर अबाउट टू फिनिश द चैप्टर. ओके, इसके बाद में सिर्फ डाउट्स लूंगा तुम्हारे. आई वॉन्ट यू टू कम अप विद डाउट्स. ओके, आई वॉन्ट टू कम अप विद डाउट्स. तो कल मुझे सुबह आपके सारे डाउट्स रेडी चाहिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के. ओके, सो नाउ दिस इज ओके. तो ये तो हमारा हो गया है फिफ्थ वाला. सो रेस्ट ऑफ द थिंग्स अगेन
क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये कैसे करेंगे 11th वाला, यहाँ पे मेरा कर्सर है। सिंपल है, काफी सिंपल प्रॉब्लम है वो। आई होप इसके आगे तुम कर सकते हो, इसके आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू सब्स्टिट्यूट सम वैल्यू हियर दैट यू विल बी एबल टू डू। ठीक है, t is equal to some a sin theta or something like that that you will have to do। ठीक है, और आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे व्हाट इज दैट प्रॉब्लम, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। अगर सब कुछ समझा है तो एटलीस्ट मुझे फर्स्ट स्टेप बताओ क्या करना है। यू हैव, देखो तुमने ट्यूशन क्लास में भी किया है, बोर्ड के पढ़ाई के टाइम भी किया है, सो व्हाई आर यू नॉट एबल टू प्रोसीड, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। अभी भी मैंने तुमको फिर से रिवाइज करवाया कि when you have something like ax square plus bx plus c के फॉर्म में होता है, तब उसको कैसे करते हैं, either it will be some a square minus x square के फॉर्म में आएगा, या फिर यहाँ पे x square plus a square के फॉर्म में आएगा, है कि नहीं। this a and this a are different, so ठीक है, तो या तो ऐसा आएगा या तो ऐसा आएगा। तो बताओ ये क्या है, राधा प्लीज बताओ तो मुझे। फिर वो x प्लस 1 होल स्क्वायर, हाँ, x प्लस 1 का प्लस होल स्क्वायर हो जाएगा ऐसा, हाँ प्लस, राधा, हाँ Yes, sir. हाँ। तो क्या प्रॉब्लम है अभी, ये फर्स्ट स्टेप लिखने में क्या प्रॉब्लम है। So I'm saying that now let x प्लस 1 को सब x सपोज plus करना 1 is equal to 2 tan theta, ठीक है कि नहीं, dx is equal to 2 हाँ sec square theta d theta, करेक्ट है कि नहीं, है कि नहीं, हाँ यही सब्स्टिट्यूशन बोला है ना उन्होंने, और कोई सब्स्टिट्यूशन। द पॉइंट इज दैट वी हैव टू एलिमिनेट दिस रूट सिंबल फर्स्ट, राइट, ये पहले एलिमिनेट करना है ना अपने को, है कि नहीं। So integrate, so I am writing it here as 2 square into sec square theta plus 2 square into dx की जगह पे sec square theta d theta, है कि नहीं, ऐसा ही है ना, हाँ ऐसा ही है, dx is 2 sec square theta d theta, ठीक है, 2 sec square theta d theta, correct। So here I get, oh sorry, I'm very very, यस यहाँ पे मैंने क्या करना चाहिए, यहाँ पे 2 tan square theta डालना है ना मुझे, 2 square tan square theta plus 2 square, ठीक है। So here I will get what, 2 sec theta, ठीक है, into 2 sec square theta d theta, ठीक है, ओके। फिर यस यस so here I will get what, 4 sec cube theta d theta, ठीक है। फिर उसके बाद अभी अभी कैसे करना है फिर, हेलो, नाउ व्हाट हैपन, बताओ कैसे करना है। अगर सेक हाँ क्यूब थीटा को पार्ट्स में किया, मतलब सेक अलग और सेक स्क्वायर थीटा अलग, तो फिर सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा sec square को क्या इंटीग्रेशन होगा, tan x। हाँ हाँ, और sec थीटा का, अच्छा वैसे बोल रहे हो तुम, बट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी तो आएगा ना, वो मल्टीप्लाई करने के बाद में tan थीटा इनटू समथिंग एल्स भी तो आएगा, राइट,
है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। फिर आप कैसे करें बताओ? ओके, I will write it as 4 by 4 sec theta into 1 by cos square theta, ठीक है, d theta. ओके, और आई कैन मतलब यहाँ पे 4 sec theta इंटू अगर sec square theta, ठीक है, अगर सपोज मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी किया, ठीक है, अगर मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी किया तो फिर कैसा आएगा मेरे पास आंसर? sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या है? सेक थीटा का सेक थीटा टैन थीटा। sec थीटा tan सेक, थीटा, हाँ। श्योर? यस। ओके, तो मैं 4 अभी आई एम जस्ट इग्नोरिंग द 4 हियर, ओके, एंड आई एम राइटिंग इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब सॉरी, आई हैव टेकन sec theta as the first function, right, and sec square theta d theta is the second function, correct? तो मेरे पास में क्या है? sec theta, ठीक है, tan theta, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर क्या आएगा मेरे पास में? sec theta tan theta इंटू tan theta, ठीक है, d theta, करेक्ट? यस। हाँ ऐसा है। हाँ। तो अब sec theta tan theta माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec theta tan square theta को मैं फिर से sec square theta माइनस 1 लिख सकता हूं, एंड दिस इज d theta, करेक्ट है कि नहीं? है कि? हाँ। सो नाउ यहाँ पे मेरा i है, ठीक है, एंड हियर i इज माय sec cube theta d theta, राइट, इंटीग्रेशन है कि नहीं, इज इक्वल टू i है, फाइन। अब यहाँ पे मेरा sec थीटा tan थीटा आ गया, ठीक है, माइनस यहाँ पे फिर से मेरा sec क्यूब थीटा d थीटा आ गया, ठीक है, ओके, प्लस sec थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन आ गया, है कि नहीं? सो हियर दिस इज इक्वल टू sec थीटा tan थीटा प्लस sec sec थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन, एंड यहाँ पे 2i आ गया, करेक्ट है कि नहीं? ये i था ना, ये i था, सो 2i मुझे आंसर मिल गया, एंड वी नो दिस थिंग, राइट, sec थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन अपने को पता है कि नहीं? सो सो i इज इक्वल टू दिस होल अपॉन 2, ठीक है, ओके। I just want to confirm that d by d theta of sec theta is what? Sec theta tan theta. Okay, so let us say this is cos theta, d by d theta of 1 by cos theta, okay, so this is cos square theta, ठीक है, माइनस माइनस sin theta इंटू 1, और दिस इज इक्वल टू sec theta tan theta, ठीक है, दिस इज करेक्ट, ओके, सो we have found the answer. Hello? Yeah. Yes. Any more problem that you want me to take? No.
सी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे एक्सरसाइज 3.3 आपको डाउट्स नहीं आएंगे. ओके, एक्सरसाइज प्रैक्टिस करो. ओके, एंड देन यू कम टू मी टुमारो विद द डाउट्स. ठीक है, फाइन. आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस पार्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ठीक है, हेलो. Yes. Yes, sir. I'm not going to take this because this is quite simple. I hope इसमें कोई डाउट नहीं है ना चाहिए. We are just splitting it, right? है कि नहीं? Are we not just splitting it? We're just finding the coefficients A, B and C, correct? And उसके बाद में ये काफी सिंपल हो जाता है कि नहीं? Yes. इसमें कोई डाउट क्या अभी पूछो मुझे. हाँ. कोई डाउट है? नहीं. पक्का? So just go through the solved examples. यहाँ पे उन्होंने देखो क्या किया है. See the screen. Problem number 4. ठीक है, उन्होंने क्या किया यहाँ पे 2 cos x कॉमन लिया, 1 प्लस sin x लिया. ठीक है, एंड दे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय cos x. ठीक है, सो दैट वी गेट cos x dx as dt by putting sin x equal to t. ठीक है, एंड देन वी गेट इट एज 1 minus t square into 1 plus t. तो फिर उन्होंने स्प्लिट कर दिया, है कि नहीं? हेलो हेलो, हाँ. समझ में आया क्या किया उन्होंने? हाँ, Yes. समझ में आया ना? हाँ, हम्म. उन्होंने फिर स्प्लिट कर दिया हाँ. एंड देन दे फाइनली गॉट द आंसर. ठीक है, सो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स बोर्ड में आते हैं वेर दे आर लाइक फॉर मल्टीपल मार्क्स. दे वोंट कम फॉर 2 marks और 3 marks. ओके, बट यू शुड बी रेडी. ठीक है, मोस्टली जो क्वेश्चंस आएंगे वो तुम्हारे डेफिनेट इंटीग्रल से आएंगे. ठीक है, बट योर डेफिनेटली इनडेफिनेट इंटीग्रल जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल का बेस है. ओके, and my target is that we should be able to finish definite integration and application of definite integration, and then tomorrow we'll be basically completing our application of derivatives and our partial differentiation. Okay, ठीक है. Yes. We're starting definite integration here. Okay, and so जैसा मैंने इंटीग्रेशन का डेफिनेशन बताया था वैसे ही there is a definition. It is just the area bounded by y is equal to f of x, x-axis, and the ordinates x is equal to a to x is equal to b when we put limits from a to b. So, इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं. So g of x is the primitive of f of x. Primitive मतलब क्या है? Integral function, right? So f of x gs को integrate करने के बाद में we get g of x, and then we finally substitute the limits gb minus ga. ठीक है? Yes. So उन्होंने ऐसे कर मतलब सॉल्व एग्जांपल्स कुछ किए हैं सिंपल. ठीक है, a to b, and then they have tried to what do we say, apply this formula that they have, the proof that they have, the mean value theorem. Okay, I'm not going to go detail in this because it is currently out of the bound for this course, and I'll just directly go to the problems. Okay, 4.1 I don't think we are supposed to do that. Okay, 4.1 I'm not taking because they have said that you have to follow the integrals as limit of sum.
बट आई एम नॉट, जैसे मैंने इसका थ्योरी नहीं पढ़ाया है, ठीक है, यू शुड नॉट बी टेकिंग दिस. एंड देन fundamental theorems of integral calculus, where they are simply substituting the value of g of b and g of a and getting the answer. ठीक है, okay. Now there are some very important Yes. properties. There are some very important properties. So if the lower limit and the upper limit are same, okay, a is called as the lower limit यहाँ पे and b is called as the upper limit. So अगर suppose ये lower limit और upper limit दोनों same है, so this integral is itself zero, है कि नहीं? Yes or no? Yes. Yes. And if you basically change the limits, then we have to substitute by, or we have to multiply by minus 1, correct? This is property number 2, correct? Yes. Now property number 3 is what? If we substitute x with any other variable, it remains the same, right? Function तो same ही रहेगा ना, है कि नहीं? हाँ. And then you have the property number 4, where if there is a number or a real number c between a and b, then the limit, the integration from a to b is from a to c, and from c to a we can split the integration. ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को? अब तक प्रॉपर्टी नंबर नहीं. डाउट है कुछ? नहीं. ओके, प्रॉपर्टी नंबर 5, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसका काफी ज्यादा यूज है, ठीक है. So it is simply f of x dx from a to b is f of a plus b minus x dx, ठीक है, fine. Yes. And we are not going to prove that property anyway, ठीक है. It is a property that has to be taken now. And then we have property number 6, ठीक है, integration from 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x. वही सेम प्रॉपर्टी नंबर 5 को यूज किया उन्होंने, a plus 0 minus x को a minus x लिखा है उन्होंने, ठीक है कि नहीं? हाँ. Then property number 7, so क्या है ये प्रॉपर्टी? f of x dx is equal to 0 to a f of x dx plus 0 to a f of 2a minus x. Are you sure this is property is correct or not? मतलब मुझे नहीं पता, मैं तुमको पूछ रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 7 सही है या नहीं है? हेलो, प्रॉपर्टी नंबर 7 सही है? Is it correct? Yes, it is a correct property, ठीक है. So 0 to 2a f of x dx is equal to 0 to a f of x dx plus 0 to a f of 2a minus x, ठीक है. This is again a very important property. And then there is a property 8 for even and odd functions. So अगर minus a to a, ठीक है, अगर minus pi by 2 to pi by 2 लिया sin x dx, it will be 0, ठीक है, and cos x will not be equal to 0 because from minus pi by 2 to pi by 2 sin x is an odd function and cos x is an even function, ठीक है. even function मतलब क्या? f of minus x is equal to f of x, and odd function मतलब क्या? f of minus x is equal to minus f of x, ठीक है. कोई डाउट है इसमें? sin x 0 रहेगा minus pi by 2 to pi by 2 के बीच में, and cos x won't be 0, ठीक है. Yes. तो यहाँ पे सिंपल है, ठीक है. यहाँ पे since sin raised to 4x, so this is an even function, sin raised to 4x is even function, right? ठीक है, उसका तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, बट x cube is a odd function, right? x cube is a odd function ना, तो इसलिए इसका इंटीग्रल फ्रॉम minus a to a 0 है, ठीक है. सिमिलरली सेकंड वाला, ये जो है इंटीग्रेशन,
ये 0 नहीं है बिकॉज इट इज अ इवन फंक्शन। ठीक है, यस। नाउ इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, वी विल टेक वन बाय वन द प्रॉब्लम्स। ओके, वी विल टेक वन बाय वन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्लीज रिजॉइन द मीटिंग। या if you see example number 15, ठीक है, so greatest integer of x from 0 to 1 will be 0, it becomes 0, from 1 to 2 it will be 1, so it is x square by 2, and then here it is x square। ठीक है, तो उसके बाद में आंसर अपने पास 13/2 आता है। ठीक है, ओके, so can we solve one problem from each of this, evaluate? ठीक है, यस। one problem from each of Yes. this, evaluate, yeah, so can you tell me which problem should I take? Fifth one. फिफ्थ वन, अच्छा, अंडर रूट 2x + 3 माइनस अंडर रूट 2x - 3। ठीक है, ओके, थ्री टू फाइव है। ठीक है, 1/√2x + 3, ऐसा ही है ना, माइनस अंडर रूट 2x - 3, 2x - 3। सो कैन आई फर्स्ट मल्टीप्लाई इट विद द कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूं मैं इसको, हाँ। सो हाँ. ब्रैकेट 2x + 3 प्लस अंडर रूट 2x - 3 होल अपॉन, क्या मिलता है मुझे, 2x + 3 minus 2x - 3 dx, this is from 3 to 5, so integral 2 to 5, यहाँ पे 2x कैंसिल हो जाएगा, 3 + 3 I'll get 6, so I'm getting 2x + 3 plus under root 2x - 3 dx। ठीक है, अब कैसे करें, a + b - x का लगा के देखूं मैं, a + b - x अगर लगा के देखता हूँ तो क्या मिलता है मुझे, 3 to 5। ठीक है, अंडर रूट 2 into 8 - x + 3, ठीक है, प्लस अंडर रूट 2 into 8 - x - 3 dx होल अपॉन 6, 3 to 5 होल अपॉन 6, अंडर रूट कितना मिलता है, 16 - 2x + 3, ठीक है, प्लस अंडर रूट 16 - 2x - 3 dx। ठीक है, 3 to 5 होल अपॉन 6, मुझे क्या मिला अभी, अंडर रूट, क्या मिला मुझे, 19 - 2x प्लस अंडर रूट 13 - 2x dx। ठीक है, हाँ। ओके, फिर तो अब मेरे लिए ये तो सिंपल ही है ना, 3 to 5 ही करना है मुझे। ठीक है, इसमें, और इवन इफ आई डोंट डू दिस, अगर मैं स्टेप नहीं करता हूं, आई हैव टू जस्ट फाइंड द आंसर, राइट, है कि नहीं, ये स्टेप नहीं भी करता हूँ, यस। ठीक है, तो ये तो मुझे पता ही है ना इसका इंटीग्रेशन क्या है कि नहीं।
इसमें कुछ प्रॉपर्टी वगैरह कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, तो ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन ना, है कि नहीं? ये कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है कि हाँ सिंपल 2x+3 तो नहीं है ना यहाँ पे, हम्म ठीक है। सो 3 to 5 प्लस अंडर रूट 2x-3 dx 3 to 5, ठीक है। सो let us say 2x plus 3 is equal to some y, ठीक है। सो 2 dx is equal to dy, correct? This is by 6, this is by 6, ठीक है। सो dx is equal to dy by 2 इंटीग्रल 3 to 5, ठीक है। एंड dx is dy अंडर रूट y dy by 2, ठीक है, रूट 6 प्लस यहाँ पे भी सेम आएगा, यहाँ पे गेट सम रूट x dx by 2 into 6 from 3 to 5, ठीक है, where x is equal to 2x minus 3, करेक्ट है कि नहीं? नाउ दिस इज यस सिंपल, इसके आगे करने की कुछ जरूरत है क्या मुझे? नहीं है ना? नहीं। ये हो जाएगा ना नहीं प्रॉब्लम, ये हो हाँ। जाएगा हाँ प्रॉब्लम, राइट? यस सो हियर y raised to 3/2, ठीक है, अपॉन 3/2, मतलब यहाँ पे इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, प्लस 2/12 इंटू 3, यहाँ पे x raised to power 3/2 फ्रॉम 3 to 5, हियर 3 and 5, ठीक है। तो डाउट है इसमें अभी? हेलो, कोई डाउट है कि इसमें अभी? नहीं सर। हाँ, नहीं। नहीं सर तो यहाँ पे जो ये y है, ठीक है, ये y की जगह तुमको क्या डालना पड़ेगा? 2x plus 3, ठीक है, एंड x की जगह अगर सपोज तुमने 13, ठीक है, 13 रेज़ टू पावर 3/2 डाला, मतलब x इज इक्वल टू तुमने 5 डाला तो तुमने 13 आएगा, और x इज इक्वल टू तुमने 3 डाला तो तुम्हारा क्या आएगा आंसर? 9 आएगा, राइट? सो 13 रेज़ टू 3/2 माइनस 9 रेज़ टू 3/2, और यहाँ पे अगर सपोज तुमने क्या डाला, x इज इक्वल टू 5 डाला, 5 टू द 10, 10 minus 3, 7 रेज़ टू पावर 3/2 आएगा, और माइनस x इज इक्वल टू 3 डाला तो 6, 6 minus 3, 3 रेज़ टू पावर 3/2 आएगा, ठीक है। सो सिंपल है ये, उसमें कोई कुछ करना नहीं है अपने को, ओके। या नाउ द सेकंड वन, हियर शायद उस प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ सकती है, करेक्ट है कि नहीं? हाँ बताओ अभी कौन सा करना है, सेकंड इवैल्यूएट का कौन सा प्रॉब्लम का? 8 8 वाला, ए स्क्वायर ई रेज़ टू एक्स प्लस बी स्क्वायर ई रेज़ टू माइनस एक्स, ओके। हेलो राधा, तुम्हारे दिमाग में कोई दूसरा क्वेश्चन है? 14th वाला। 14 वाला, ए रेज़ टू cos इनवर्स एक्स sin इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। ओके, सो लेट अस टेक द, कौन सा वाला करना है अपने को पहले? हेलो, 8 वाला, राइट? लेट अस टेक द 8 वाला क्वेश्चन, यस 1 by a square e raised to x plus b square e raised to minus x dx,
8 वाला 1 by e square e raised to x 1 by e square e raised to x plus b square है ना ये b square e raised to minus x b square e raised to minus x okay dx ठीक है नाउ यहाँ पे -1 to 1 नाउ लेट अस से मैं यहाँ पे एक चीज करता हूँ मैं e raised to x से पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ ठीक है सो e raised to x से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो यहाँ पे e raised to x आएगा a square e raised to power 2x प्लस b square dx ठीक है फिर ये -1 to 1 है करेक्ट है कि नहीं हाँ हेलो ऐसा आएगा ना e raised to x से मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया करेक्ट हाँ उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ अभी कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊं मैं so I again apply that f of a plus b minus x वाली प्रॉपर्टी is equal to dx is equal to f of x dx ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ ना मैं है कि नहीं हाँ हाँ सो फिर उसके बाद क्या आएगा मेरे पास में I'll get -1 to 1 e raised to minus x upon a square e raised to power -2x plus b square dx करेक्ट ऐसा है ये आए है ठीक है करेक्ट है कि नहीं हेलो ये हाँ समझा क्या हाँ हाँ ठीक है सो e raised to minus x अपॉन यहाँ पे a square प्लस b square e raised to 2x ओके इनटू e raised to power 2x dx ऐसा आ गया ये कैसे आया ये e raised to -2x है ना तो ये मैंने e raised to -x अपॉन a square अपॉन e raised to 2x लिखा प्लस b square ऐसा लिखा मैंने इसको ठीक है आई रोट इट दिस वे हाँ ठीक है फाइन यस यहाँ पे -1 to 1 ठीक है फिर उसके बाद में e raised to power -x तो यहाँ पे मेरे पास सिंपली e raised to x आएगा राइट e raised to x अपॉन a square प्लस b square e raised to power 2x dx ठीक है अब अब क्या करूं मैं अब क्या कर सकता हूं मैं नाउ हाउ विल आई इंटीग्रेट टेल मी अब मैं नॉर्मल इंटीग्रेशन लगाऊं या वही प्रॉपर्टी यूज करूं नाउ I can put e raised to x as some t. I can put e raised to x as some t. Correct? है कि नहीं? हाँ Okay. So e raised to x dx is equal to dt. ठीक है? यस So अब यहाँ पे मैं सिंपली -1 to 1 ठीक है? यहाँ पे dt अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ ना है कि नहीं हाँ हाँ करेक्ट है कि नहीं यस now this limits have to change okay so when e raised to when x is equal to -1 x is equal to -1 मतलब जब लोअर लिमिट डाल रहा हूं मैं so t will be equal to 1 by e and when x is equal to 1 t will be equal to e correct so this will be from 1 by e to e this will be the new limit समझ में है ना ये t के लिमिट डालने पड़ेंगे ना मुझे है कि नहीं t के लिमिट डालने पड़ेंगे ना मुझे मैं x का लिमिट अगर चेंज कर रहा हूँ मतलब आई एम सब्स्टिट्यूटिंग दिस e raised to x is equal to t
ठीक है, तो मैं जब x इज इक्वल टू -1 ले रहा हूँ, मतलब लोअर लिमिट ले रहा हूँ, तो मुझे t इज इक्वल टू 1 बाई ई आ रहा है ना, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1 है तो t इज इक्वल टू ई आ रहा है, करेक्ट है कि नहीं? हाँ नाउ उसके बाद में इंटीग्रल, फिर अब ये तो सिंपल हो गया राइट, ये तो सिंपल हो गया ना। हाँ अब कैसे करना है इसको? मैं 1/v² कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है, दिस बिकम्स dt अपॉन a² बाय v² प्लस t², ठीक है, कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं। ठीक है, नाउ द आंसर इज tan इनवर्स t बाय a बाय b, ठीक है, एंड लिमिट्स फ्रॉम 1/e टू e, करेक्ट? यस। ओके, सो दिस इज द आंसर। और कोई आंसर है क्या इसमें? और किसी तरीके से कर सकते हैं हम लोग सॉल्व इसको? हेलो, यस। and here this is multiplied by 1 by v². मैं t की जगह पे डायरेक्टली e रेज टू x भी पुट कर सकता हूँ, सो इट विल बी इफ आई पुट e रेज टू x, ठीक है, इनटू b बाय a, ठीक है, तो यहाँ पे फिर -1 to 1, यहाँ पे 1/v² रहेगा। राधा कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं सर। हाँ, ठीक है, या देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? 14th वाला। 14th वाला कैसे करेंगे इसको? e raised to cos inverse x sin inverse x upon under root 1 minus x square. How will you do this problem? Any idea? कुछ है तो बताओ मुझे। cos इनवर्स x को अगर हम्म, साइन के टर्म में किया, मतलब हाँ, वो फॉर्मूला लगा के साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 हम्म, का, और ओके, फिर मतलब और फिर साइन इनवर्स को अगर t सब्स्टिट्यूट किया तो फिर हो सकता है क्या? देखो टेक्स्ट बुक तुम्हारा है, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुमने प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा, ठीक है, तुमने किया था ये प्रॉब्लम सॉल्व? हाँ मतलब मैंने किया है पहले, पर वो मतलब आया नहीं था वो मुझे पहले। अच्छा, तो 1/√2 टू 1 ऐसा ही है ना, ठीक है, 1/√2 टू 1 e raised to cos inverse x sin inverse x upon e raised to cos inverse x, ठीक है, sin inverse x upon under root 1 minus x square dx, ठीक है। Now I'm saying that simply let sin inverse x is equal to some theta or some t, ठीक है, so x is equal to sin t, just removing this thing here, ठीक है, ठीक है ना, तो यहाँ पे sin t, x is equal to sin t, करेक्ट है कि नहीं? एंड डी बाई डी एक्स अगर मैं दोनों तरफ लूंगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, ठीक है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, है कि नहीं? है कि नहीं? ये आएगा मेरे पास में, ठीक है, तो अब मेरे पास में cos इनवर्स x है, ठीक, सो कैन आई राइट we know this property, right? Sin inverse x plus cos inverse x is equal to π/2, ठीक है, so cos inverse x is equal to π/2 minus sin inverse x, right? है कि नहीं?
Yes. is equal to pi by हाँ. 2 minus t, correct? So e raised to pi by 2 minus t, ये है, ठीक है? फिर अपने पास क्या है? sin inverse x is equal to t है, राइट? इंटू t है, एंड dx by under root 1 minus x square, dx by under root 1 minus x square we have as dt, ठीक है? कोई डाउट है अभी इसमें राधा? नहीं सर। हाँ. Now when we have sin inverse x is equal to some, what do we say? T, and x is equal to what? X is equal to what? When x is equal to 1 by root 2, then t is equal to what? Pi by 4, ठीक है? And when x is equal to 1, then t is equal to what? Pi by 2, है कि नहीं? So the limits have now changed from pi by 4 to pi by 2, ठीक है? pi by 4 to pi by 2. अब कैसे करें? अब तो सिंपल हो गया नहीं? अब तो काफी सिंपल हो गया. I can simply take this as the second function, this is the first function, correct? Yes. Yes. And अगर सपोज मुझे वो प्रॉपर्टी भी लगानी है a plus b minus x वाली, ठीक है? So I can apply that property also, ठीक है? तो e raised to pi by 2 minus pi by 2 plus pi by 4 minus t, करेक्ट है कि नहीं? इंटू फिर से क्या है यहाँ पे pi by 4 plus pi by 2 minus t इंटू dt, ये आ जाएगा यहाँ पे. Yes. pi by 4 इंटू pi by 2 e raised to t minus pi by 4, ठीक है? प्लस अंडर, ठीक है? अगर मैंने प्रॉपर्टी नहीं भी लगाई तो भी द प्रॉब्लम इज सॉल्वेबल फ्रॉम दिस स्टेप, ठीक है? इज इट नॉट सॉल्वेबल, है कि नहीं? इट इज सॉल्वेबल, राइट? Yes. हाँ. राधा, कोई डाउट है क्या अभी इसमें? नहीं सर। ओके. हाँ. सो टुमारो यू कैन solve the problem from here and find the answer, ठीक है? Okay. Now which problem should I take? Now this third वाले जो है ये प्योरली प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम्स हो गई. आई गेस यहाँ पे अगर सपोज हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो सारे आंसर्स हमको मिल जाएंगे. ये वाला 9th वाला वैसे ही 0 है, ठीक है? 9th वाला जो है वो तो वैसे ही 0 बिकॉज दिस इज मॉड फंक्शन, करेक्ट? और बाकी वाले जो है एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व, आई एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व. 12th वाला 0 होगा कि नहीं होगा? हाँ 0 होगा. पक्का? राधा, एनी डाउट है इसमें? कोई डाउट है इसमें? नहीं। ओके. 10th वाला 10th वाला 0 नहीं होगा. ओके. क्या प्रॉपर्टी यूज करें फिर वहां पे? ओके, लेट अस सॉल्व द 10th वाला. अब तुम लोग मुझे बताओ कैसे करना है उसको. जीरो टू वन log of x plus 1 upon x square plus 1 dx, ठीक है? हेलो. हाँ. Yes. So I'm writing this as I, ठीक है? So I is equal to 0 to 1. I'm just doing it from my side. तुम अपनी तरफ ट्राई करो एंड लेट मी नो व्हाट इज द आंसर. और मतलब मुझे तरीका बताओ कैसे करना है. आई एम नॉट आस्किंग फॉर द फाइनल आंसर, मैं बस पूछ रहा हूँ कि ये कैसे करेंगे करके.
So 1 minus x plus sec plus 1 upon 1 minus x whole square plus 1 dx. Integral 0 to 1. So log of 2 minus x dx upon 2 minus 2x plus x square. मैं दूसरा एक प्रॉपर्टी लगा के देख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो x 0 to half 0 to 1 यहाँ पे लिखूंगा log of x plus 1. Are you trying on your side? Yes, sir. Yes. हाँ सर हाँ अगर x को tan थीटा पुट किया तो x को tan थीटा पुट किया, ओके। हाँ तो क्या होगा फिर उसके बाद में? फिर नीचे sec थीटा हो जाएगा और मतलब log tan थीटा प्लस 1 अपन sec स्क्वायर थीटा ऐसा हो गया। ओके। I just want you people to revise that property once again, ठीक है। यहाँ पे जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी थी, zero to a f of x dx plus 0 to a f of 2a minus x, प्रॉपर्टी नंबर 7. I'm just trying to see कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगती है या नहीं लगती है. log of 2a 2a is 1 minus x 1 dx on okay. Let us try by your method also. X is equal to tan theta, ठीक है। So dx is equal to what? sec square theta 3 theta, ठीक है। एंड sec square theta कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं? Then we'll be left with only log of tan theta plus 1 d theta, ओके। अगर सपोज इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा मेरे पास में? आई एम जस्ट इग्नोरिंग द लिमिट्स राइट नाउ. I'll get theta log of tan theta plus 1 minus the root theta by tan theta plus 1 sec square theta d theta, करेक्ट? ऐसा मिलेगा हमको? हाँ फाइन। फिर उसके बाद में I can take this tan theta plus 1 sec square theta d theta is the first function, correct? I can ignore this. तो फिर मुझे क्या मिलेगा? Again I will get the same thing, right? Again I will get the same thing. So I'll get theta tan of log of
tan थीटा प्लस 1, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस थीटा log of tan थीटा प्लस 1 d थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ और प्लस इंटीग्रल ऑफ log of tan थीटा प्लस 1, ठीक है, d थीटा. So I've still not arrived at the answer, ठीक है कि नहीं? I've still not arrived at the answer. So let us note that problem down, ठीक है, हम लोग वो प्रॉब्लम नोट डाउन करते हैं and we'll try to solve later. Okay? Let us take a break of 15 minutes and then we'll be back. Okay. Yeah. Yes. Okay. I'm not going to take much chapters, much questions from this chapter. Application of definite integration. Okay. We're directly going to solve the problem because it is very very simple. ठीक है. यहाँ पे या तो x y square dx होता है, मतलब y dx का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं फॉर द एरिया विच इज बाउंडेड बाय y एंड x एक्सिस एंड x dy का तब एक मतलब आई एम जस्ट राइटिंग इट ऑन द बोर्ड वंस अगेन. यहाँ पे दो इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं, y dx का और एक x dy का. सो व्हाट इज y dx? लेट अस से वी हैव अ कर्व लाइक दिस. हमको अगर y dx है तो ये वाला एरिया रहेगा, ठीक है, और अगर सपोज x dy है तो ये वाला एरिया रहेगा, ठीक है. Fine. ठीक है. So this is the area bounded by the curve sum x is equal to sum f of y and y axis, ठीक है, and this is the area bounded by sum y is equal to f of x and x axis, ठीक है. Yes. समझ में आया? Yes. ओके. हाँ. अदर कोई डाउट है? नहीं सर. हाँ. So इसमें काफी सारे सॉल्व एग्जांपल्स है. I'm not going to go through the solved examples. That just directly going to solve the problems. There is only one exercise. There is only one exercise here. Okay. So इसका ये मतलब है कि problems आना ही आना है इसमें से, ठीक है. Application of 40 marks का जो आपका कैलकुलस का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें अगर लेटर से 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इसमें से 2 क्वेश्चंस आना ही आना है आप, ठीक है. Now they have asked us to find, let us say I am exercise 5.1 का थर्ड वाले का फर्स्ट वाला कर रहा हूँ, ठीक है, थर्ड वाले का फर्स्ट वाला कर रहा हूँ, ठीक है. Find the area of the region included between y square is equal to 2x and y is equal to 2x. ठीक है. So firstly we basically we draw the graphs. Okay. y square is equal to 2x का ग्राफ कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा, है कि नहीं? हाँ. ऐसा रहेगा ना. और I'm just to clear the confusion. y is equal to x square का ग्राफ कैसा रहेगा? ये y is equal to x square का ग्राफ है ऐसा, एंड ये y is equal to x square का ग्राफ है ना ऐसा, है कि नहीं? एंड y square is equal to 2x का ग्राफ ऐसा है, राइट, इस तरफ, है कि नहीं? सो I have to find the area between this y square is equal to 2x and y is equal to x. y is equal to 2x, ठीक है. So let us say this is y is equal to 2x. तो मुझे ये एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला है. ओके. तो पहले तो मुझे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो पता ही है, राइट. एक तो 0,0 तो है ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. दूसरा मुझे फाइंड आउट करना है, करेक्ट. सो y square is equal to 2x and y is equal to 2x, ठीक है. सो y square is equal to y लिया मैंने, ठीक है. एक तो 0 तो आता ही है, एंड द अदर पॉइंट वी गेट इज y is equal to 1. When y is equal to 1, x is equal to what? x is equal to what? Half, है कि नहीं? When y is equal to 1, y is equal to 1, x is equal to what? 1 by root 2, correct? Yes. Yes or no? Yes. 1 by root 2 ना. हाँ, तो ये वाला जो पॉइंट है इट इज 1 by root 2
comma 1 and this is 0 comma 0, right? इसमें कोई डाउट है? नहीं. नाउ अब ये मुझे एरिया कैसे मिलेगा? मुझे ये वाला एरिया पता है ना, द वन, ये जो ट्रायंगल वाला एरिया है, ठीक है, हाँ. ये वाला एरिया जो ट्रायंगल वाला एरिया है, ये क्या है? ऐसा है, ये एरिया मेरा स्ट्रेट लाइन, ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट है कि नहीं? हाँ. तो आई नो द बेस, बेस इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है, एंड हाइट, Yes. height I know as this is 1, correct? So half of Yes. 1/√2 into 1 और 1/2√2, ये मुझे एरिया मिल गया है ट्रायंगल का. नाउ आई कैन कैलकुलेट दिस एरिया ऑल्सो यहां से. ओके, एंड अगेन ड्रॉइंग ऑन द नेक्स्ट पेज. अब मैं ये वाला एरिया भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, राइट? है कि नहीं? हाँ. ये कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में जो है ये वाला एरिया, व्हाट इज दैट एरिया? y square is equal to 2x, so y is equal to what? √2 into √x, correct? है कि नहीं? Yes. Okay, and I have to integrate between 0 to 1/√2. Yes or no? Yes. Integration from 0 to 1/√2 √x dx. Okay, fine. Yes. So again x raised to power, अब इसका इंटीग्रेशन आ गया है मेरे पास में 3/2 और यहाँ पे भी 3/2 ही रहेगा, राइट? हाफ प्लस 1, राइट? एंड लिमिट्स आर फ्रॉम Yes. 0 to 1/√2, करेक्ट? हाँ. सो √2/3 into 2√2 और यहाँ पे 1/√2 raised to the power 3/2. बाकी तो 0 ही रहेगा, ठीक है? सो 2√2/3 into what? Hello? Yes. So this is again 2 raised to the power half, right? है कि नहीं? And so 2 raised to the power 3/4, correct? है कि नहीं? ऐसा ही आएगा ना, 1/2 raised to the power 3/4, and this is 2 into 2 raised to the power 3/2, ठीक है, upon 3 into 2 raised to the power 3/4, correct? So 3/2 minus 3/4 कितना होता है? I'm just subtracting the exponents here, ठीक है? So 6 minus 3/4 और this is 3/4. So 2 raised to power 3/4 upon 3 is the answer. And इसमें से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है? मुझे I have to subtract this area. कौन सा? 1/2√2. So I have to just subtract here 1/2√2. समझ में आया मुझे? मतलब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है? So this is the answer, right? This is the answer. I'm just writing the answer here. 2 raised to power 3/4 by 3 minus 1/2√2. Just to verify, is it positive or not? Okay. How can you verify whether this is positive or not? Can somebody bring the scientific calculator? Hello? Yes. कोई वेरीफाई? Yes, sir. मोबाइल में करना आता है इसको कैलकुलेट? हाँ. एक मिनट.
Okay, I'm getting the answer as 0.20. 0.20. You can just verify from the final thing 0.207. राधा, you can just verify कि आंसर यही है करके, ठीक है? Yes, sir. Can you verify now? तुम्हारे पास है टेक्स्ट बुक कि नहीं है? ये टेक्स्ट बुक है सर. Can you verify the answer now? जल्दी बताओ मुझे 1 मिनट में. 5.1 का थर्ड का पहला. वन बाय 12. 1/12 आ रहा है. Okay, and what is 1/12? 0.083. Are you sure? 5.1 का थर्ड का पहला. हाँ. क्या मिस किया हमने? I'm just going back to the answers here. फाइव पॉइंट वन थर्ड का पहला 1/12. ओके, दिस इज सरप्राइजिंग फॉर मी. 1/12 दिया है. ये मानस क्या गलत किया हमने? हेलो मानस, Yes, yes, क्या sir. गलत किया? ऐसा कुछ लग रहा है कि गलत किया करके? हेलो, जल्दी बताओ यार, क्या गलत Yes. किया? y is equal to 2x है, ठीक है, फाइन. Hmm. एंड y square is equal to 2x है, ठीक है. सो व्हाट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट? हाँ. इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? y square is equal to y इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, राइट? ठीक है. सो हाँ. y minus 1 is equal to 0. 0 तो है ही अपना 0. इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और y is equal to 1 भी है कि नहीं? Yes. सो वी गेट दिस y square is equal to 2. y square is equal to 2 अगर मैंने लिया, ठीक है, तो मेरे पास में एक ही ऑप्शन बचता है, y is equal to सॉरी मतलब 1 is equal to 2x, right? So x is equal to Yes. half. This is the mistake that we did. Okay, this is the mistake that we did. समझ में आया क्या? Yeah. Yes, yes. Okay, so मेरे सारे लिमिट्स जो है वो फ्रॉम 0 to half है राधा. You have to correct me अगर मैं सपोज ऐसा कोई मिस्टेक कर रहा हूँ तो, ठीक है? You have to correct me, ऐसे मिस्टेक्स होते हैं, ठीक है? So again यहाँ पे freshly I'm writing root x minus मतलब √2x सिंपली ये माइनस ये है कि नहीं? दिस इज द ग्राफ ऑफ √2x, ठीक है, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ Yes. 2x, राइट? सो एंड दिस इज फ्रॉम 0 to half dx. समझ में आया ना क्या है ये? हाँ. ठीक है. सो व्हेन आई डू दैट आई गेट √2 into x raised to the power v by 2
अपॉन 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड आई हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to हाफ, करेक्ट? अब सही आएगा? यस हाँ तो सेकंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की तो जरूरत ही नहीं है, ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा. सो आई एम जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द फर्स्ट वाला वैल्यू. सो √2 into 1/2 raised to the power 3/2 into 2 और यहाँ पे into 3 है, ठीक है, माइनस 1/4, ठीक है. सो यहाँ पे क्या आएगा? दिस इज अगेन 2√2 कैंसिल हो जाएगा एंड हियर आई एम गेटिंग जस्ट 1/3, राइट? 2 raised to power 3/2 is 1/2√2, right? है कि नहीं? हाँ 1/2 2 raised to power 3/2 is 1/2√2, right? 2√2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ मेरे पास में यही बचेगा ना, 1/3. सो द आंसर इज सिंपली 1/3 minus 1/4 which is equal to what? 1/12. 1/, ठीक है, ठीक है. तो डाउट है इसमें अभी? यस नहीं राधा, को डाउट है अभी? सो वी हैव टू Nice, sir. we have to avoid these mistakes. Okay. Now you tell me कि कौन सा करना है? ये सबसे सिंपल चैप्टर है, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ खास है नहीं. ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया था फंक्शंस वाले चैप्टर में, ग्राफ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. कैन वी टेक दिस फर्स्ट का, ये वाला फिफ्थ वाला, फर्स्ट का फिफ्थ वाला. यस आई गिव यू 2 minutes टू ट्राई ऑन योर ओन, ठीक है. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स, x axis and the given lines. x is equal to 1 क्या रहेगा? x is equal to 1 is basically the line which is parallel to the y-axis, line which is parallel to the y-axis and passing through 1, correct? And x is equal to 4 is what? X is equal to 4 is what? X is equal to 4 is again a line which is passing through x-axis at x is equal to 4 and parallel to y-axis, correct? काफी सिंपल है ये, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं. First you have to draw the graph of x y is equal to 2, ठीक है, between x is equal to 1 to x is equal to 4. कैसा आएगा x y is equal to 2 का ग्राफ? कैसे आएगा? हेलो हेलो, यस यस एक्स वाई इज Yes, इक्वल sir. टू का ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा ना, ठीक है, दिस इज द पॉइंट, हाँ. और ऐसा आएगा, है कि नहीं? एंड व्हाट इज दिस पॉइंट यहाँ पे, विच इज द नियरेस्ट पॉइंट? व्हाट इज दिस पॉइंट? √2 है ना, ये पॉइंट, है कि नहीं? हाँ हाँ यस और नो? कोई डाउट है कि इसमें? यस नहीं. And they are asking from x is equal to 1 to x is equal to 4. They are asking this area, right? ये एरिया पूछ रहे हैं ना. And we know xy is equal to 2, so y is equal to 2/x, correct? And we have to simply integrate this thing. So we have to just यहाँ पे वैल्यू से पुट करना है, इसका इंटीग्रेशन 2 log x है, and we have to substitute from 1 is equal to 1 to 4, ठीक है. So 2 log 4 minus log 1, करेक्ट है कि नहीं? यस
हाँ So the answer is simply what? 2 log 4. है ना? Log 1 तो वैसे ही 0 है, right? Log 1 is 0. So the answer is 2 log 4. Practice hard. Okay. yes Okay. Do you want me to take application of derivatives? It's quite a big chapter. इसमें काफी सारे concepts हैं. Do you want me to take it now? Tomorrow you have to ask me questions from all the 3 chapters. Okay. Indefinite, definite, and this thing. Do you want me to take? अरे यार जल्दी बताओ यार, टाइम नहीं है मेरे पास उतना. हेलो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स लेना है क्या अभी? सर कल लिया तो चलेगा कल क्या? लेते हैं. हाँ ओके ठीक है, फाइन. तो कल फिर तुमको फिर सारा ही ये पार्ट 2 खत्म ही करना है फिर अपने. ठीक है, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अगर पार्ट 2 खत्म भी नहीं होता है तो एटलीस्ट हमको यहाँ तक तो डिफरेंशियल इक्वेशंस तक तो खत्म करना ही है. ठीक है, यस डिफरेंशियल इक्वेशंस तक खत्म करना ही है. ओके या चलो बाय, थैंक्स. So we are going to study Newton's law of cooling for application of differential equations. So d theta by dt, they have given it as equal to k into theta minus theta naught. So theta naught is the ambient temperature, जो हमारा surrounding का temperature है. Okay, and theta is the temperature of the body. Okay, so this is what, and this they have multiplied by -1 so that to denote that it is a decreasing temperature. Okay, yes fine. So when you have d theta upon theta minus theta naught, okay, is equal to minus k dt, we integrate on both the sides, we get log of theta minus theta naught is equal to minus k t, correct? yes Fine. So theta minus theta naught is equal to e raised to power c into e raised to power minus kt, correct? So we have to find a value of this e raised to c, correct? So when t is equal to 0, when t is equal to 0, this theta is the initial temperature, right? जब मैंने टाइम गिनना चालू किया, ठीक है, तो मेरा इनिशियल ये टेम्परेचर, ये बॉडी का टेम्परेचर कितना था? θ1 था, करेक्ट? तो they have told me that कि उस समय पे when theta is equal to θ1 at t is equal to 0, fine, t is equal to 0 initially, ठीक है, तो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ वहां पे, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू θ1 मैंने अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया एंड t इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, t इज इक्वल टू, तो ये तो 1 हो जाएगा, राइट? दिस इज 1. So e raised to c is θ1 minus θ0. So e raised to c is θ1 minus θ0 is equal to e raised to c, करेक्ट? ये समझ में आया? हाँ. कोई डाउट है इसमें? ओके, so theta is equal to θ0 plus theta is equal to θ0 plus θ1 minus θ0 into e raised to power minus kt, ऐसा उन्होंने दिया हुआ है. ओके, फाइन. yes नाउ ये हमेशा this keeps on varying depending on the problem. This keeps on varying depending on the problem, correct? Now yes we have to start with one problem, so we go to this 8th problem now. Okay, 8th problem में क्या दिया उन्होंने?
body cooling to, according to Newton's law, from 100 to 60 degrees Celsius in 20 minutes. The temperature of the surrounding being 20 degrees Celsius. How long will it take to cool down to 30 degrees Celsius? Okay. So, Yes. so it has cooled down from 100 to 60 degrees in 20 minutes, and the surrounding temperature is 20 degrees Celsius. Okay. So I have to find this value of K. Okay. यहाँ पे fine, and θ1 is the initial temperature. Okay. तो उन्होंने बोला कि मुझे थीटा दिया, मतलब आफ्टर 20 मिनट्स दे हैव गिवन मी द थीटा कि मेरा बॉडी 60 डिग्री पे आ चुका है, राइट? सो आई नो 60, आई नो थीटा नॉट विच इज इक्वल टू 20 प्लस, ठीक है, ई रेस टू, मुझे टी पता है, 20 मिनट्स मुझे पता है, ठीक है, एंड आई नो θ1 माइनस थीटा नॉट विच इज इक्वल टू व्हाट, 100 minus 20, correct? 100 minus 20, Yes. right? θ1 is the initial temperature of the body, correct? Theta naught is the ambient temperature. So this is 80 into e raised to the power minus k into 20, correct? Yes or no? Yes. So 40 by 80 is equal to, just erasing this thing, 40 by 80 is equal to e raised to the power minus k 20, fine? Half Yes. is equal to e raised to the power minus 20k, correct? Like any. So I take log on, natural log on both the sides. So minus log 2 is equal to minus 20k, correct? Like any. Yes. So 20k is equal to log 2, fine? Yes. K is equal to what? Log 2 by 20. ठीक है? This is the value I got of the constant. ठीक है? Yes. Yes. कैलकुलेट करना है कि 30 डिग्री होने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है? मुझे टी कैलकुलेट करना है, राइट? ओके, सो Yes. रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स रिमेन द सेम, ठीक है? रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स जो है मेरे पास में, अब मुझे पता है कि मेरा थीटा जो है वो 30 डिग्री है, ठीक है? थीटा नॉट इज हाउ मच? थीटा नॉट इज हाउ मच? थीटा नॉट इज मेरे पास में 20 है, राइट? ओके, सो 20 प्लस 80, θ1 माइनस थीटा नॉट तो कांस्टेंट ही है, राइट? प्लस इनटू e रेज़ टू पावर माइनस k. k की वैल्यू क्या है मेरे पास में? log 2 by 20, करेक्ट? 20. log 2 by 20 है वैल्यू, करेक्ट? हाँ, e रेज़ टू पावर माइनस log 2 by 20 into t, करेक्ट है कि नहीं? So I have to find out t. तो मैं 10 by 80 is equal to e raised to power minus log 2 by 20 into t. So 1 by 8 is equal to e raised to power minus log 2 20 into t, correct? I take log on both the sides. So minus 3 log 2 is equal to minus log 2 by 20 into 3. Log 2 cancel, minus minus cancel. So t I'm getting it as 60 minutes. Yes. ठीक है? Fine? Yes. Now let us quickly go to the second wala problem. ठीक है? Rate of growth of a population of a city at any time t is proportional to the size of the population. For a certain city, it is found that the constant of proportionality is 0.04. Fine. So find the population of the city after 25 years if the initial population is 10,000. Okay. Yes. So let us do this problem quickly. Let us say the population is P. I know, and they have told that dP by dt, or the rate of increase of population, is proportional to the size of the population. ऐसा ही है ना? Yes. So this is proportional to P, the population at that time, or dP by dt is equal to some k into P. And this constant of proportionality k, they have given it as 0.04, correct? Yes or no? Yes.
0.0, correct? So I do this again, and I get log P is equal to KT plus C, correct? This is the constant of probability. Yes. Okay, so population P is equal to what? E raised to power KT into E raised to power C. So when T is equal to 0, then E raised to C has to be P naught, right? P naught, right? है कि नहीं? When T is equal to 0, so initial population अगर मेरा P naught है, so then E raised to C has to be some P naught, right? है कि नहीं? Yes. Fine. So the population P is equal to P naught into E raised to power K into T. Fine. Yes. Now after 25 years उन्होंने पूछा है, right? Fine. उन्होंने 25 years पूछा है ना? So P is equal to, और initial population कितना दिया उन्होंने? 10,000 दिया है, ठीक है? So 10,000 into E raised to the power K 0.04 into 25 is equal to 10,000 into E raised to power 1 or 10,000 into 2.7. ठीक है? 71 है कि नहीं? कितना मिला मुझे population? 27,000 approximately. Yes. Correct? So this is the 25 years. ठीक है? Now I'm taking the decay wala problem. ठीक है? The radium decomposes at the rate proportional to the amount present at any time. If P% of the amount disappears in 1 year, ठीक है? What is the percent of radium will be left after 2 years? Okay. Proportional to the amount present at any time. So here the constant of proportionality has to be K, right? Because it is decreasing. The radium is decomposing, right? Okay. So they are saying that in 1 year P% disappears. ठीक है? In 1 year P% disappears. ठीक है? So they are asking the कितना percent disappear होगा after 2 years. Fine. Quite a simple problem. ऐसा कुछ difficult नहीं है इसमें. Let us say the radioactive material R. Okay. So they have given that dr by dt, okay, is equal to minus K into R, right? K into R is fine. K क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि ये डीके हो रहा है, करेक्ट है कि नहीं? माइनस K R, ठीक है? So again I do dr by R is equal to minus K dt. I have done integration on both the sides. So R is equal to minus K into T plus C. ठीक है? Fine. Now here R is equal to e raised to power minus kt into c. Yes. So here again, अब यहाँ पे c जो है e raised to c जो है यहाँ पे वो कैसे कैलकुलेट होगा? By putting t, right? तो अगर सपोज मेरा t 0 मैंने डाला तो let us say initially r is equal to r naught, है कि नहीं? Initially to r naught, so I will get e raised to c is equal to r naught or the initial, right? So initial amount of radioactive material, so it is r naught e raised to the power minus kt. Now they have given that it decreases by p%. It decreases by p% मतलब क्या? It decreases by p% मतलब क्या? If p% of the amount disappears in 1 year, यानी कि क्या मानस? p disappears in 1 year मतलब क्या? मतलब let us say 25% disappear हो गया एक साल में, ठीक है? Disappear तो बचा कितना? 75% बचा ना मेरे पास में, है कि नहीं? So इसका ये मतलब है कि अगर सपोज एक साल में p% डिसअपियर हो रहा है तो r इंटू 1 माइनस p बाय 100, ठीक है? ये मेरे पास बचेगा, राइट? है कि नहीं? एक साल, करेक्ट? यस. है कि नहीं? So I have to put this r naught into 1 minus p by 100 is equal to r naught into e raised to power minus k,
time is, let us say t is 1 year, so I have taken minus है कि नहीं, है कि नहीं? So R0 cancel हो गया, so 100 minus p by 100 is equal to e raised to power minus k. Fine. Yes. So I'm taking log of 100 minus p by 100 whole is equal to minus k. Fine. A equal to minus log of 100 minus p by 100. ठीक है, ये आ गया. Yes. अब उन्होंने मेरे पास में मेटल 2 साल के बाद कितना बचेगा. They are asking me the value of R after 2 years, right? कि उन्होंने ये पूछा कि what percent amount will be left, right? हाँ. लेटेस्ट से मैं कैलकुलेट करता हूँ कि R मेरे पास 2 साल के बाद कितना बचेगा, and then I have to calculate the total percentage, right? तो टोटल परसेंटेज लॉस कितना हुआ है वो पूछा उन्होंने, है कि नहीं? तो मुझे R पता है, तो R कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, R0 इंटू e raised to the power log ऑफ, अब k की जगह पे मैंने ये वैल्यू डाल दी, ठीक है, log ऑफ 100 माइनस p बाय 100 इंटू 2, करेक्ट. t की जगह मैंने 2 रखना पड़ेगा, राइट? तो R0 इंटू, so is it not 100? Is it not 100 minus p upon 100 whole square? हाँ, correct. E raised to power some log x. ये कैंसिल ना, x ही होता है, राइट? हाँ, x ही होता है, हाँ हाँ. एंड x की जगह मैं क्या डालूंगा, 100 minus p by 100 whole square, right? Yes, whole square, right. तो फिर मुझे क्या मिला, R0 इंटू 1 minus p by 100 इंटू 1 minus p by 100, करेक्ट? ऐसा ही मिला ना मुझे, ठीक है? एंड दिस जो है, ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, अब मुझे ये कैलकुलेट करना है कि कितना डिक्रीज हुआ मेरे पास में, तो मैं क्या करूंगा, R0 माइनस R0 इंटू 1 माइनस p by 100 इंटू 1 माइनस p by 100, ओके, होल अपॉन R0, ठीक है, इंटू 100, मतलब फाइनल अमाउंट, मतलब इनिशियल अमाउंट माइनस फाइनल अमाउंट इंटू 100 किया तो मेरे पास टोटल परसेंटेज मिलेगा, राइट? परसेंटेज आएगा, हाँ हाँ. 1 माइनस p स्क्वायर बाय 1 प्लस p स्क्वायर बाय 10,000, ठीक है, माइनस 2p बाय 100, ओके, इंटू 100 करना है मुझे, ठीक है? तो मुझे क्या मिलेगा, 2p बाय 100 माइनस p स्क्वायर बाय 10,000. Okay, this is the percentage amount that is left. I'm just pausing the recording for a minute. This is the total percentage change that will be there. Okay, समझ में आया ना, into 100, into 100, so it will be what, 2p minus p square by 100. This is the total percentage change after 2 years. ठीक है? Yes. Now let us take the volume वाला problem. As I said, this is a quite a big chapter. ठीक है, इसमें अलग-अलग टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, बट 6.6 में ज्यादा वैरायटी है, इसलिए मैं ये assume that the spherical raindrop evaporates at a rate proportional to its surface area. If its radius originally is 3 mm and 1 hour later has been reduced to 2 mm, find an expression for the radius of the raindrop at any time t. Okay. So I have a raindrop. Okay. The raindrop spherical shape में है, correct? Raindrop spherical shape, इसका radius r है, correct? So Radha, have you attempted this problem earlier? Yes, sir. कैसे करते हैं फिर इसको बताओ थोड़ा. Sir, 1 minute.
यार मेरा रिकॉर्डिंग रुक जाता है 1 मिनट के लिए। हाँ फिर कैसे करते हैं? तुमने किया है बोल रहे हैं ना तुम? सो स्पेरिकल रेन ड्रॉप है, ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब, by 3 pi. ठीक है कि नहीं? और हाँ हमने क्या दिया है उसके बाद में? जस्ट 1 मिनट। उसके बाद उन्होंने क्या दिया है? उसके बाद उन्होंने दिया है कि इट इवेपोरेट्स एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। मतलब उसका वॉल्यूम कम कम होता जा रहा है ना, है कि नहीं? हाँ इवेपोरेशन हो हाँ. रही है, उसका वॉल्यूम कम कम हो रहा है, राइट? उसका रेडियस कम हो रहा है, राइट? सो आई कैन टेक dv by dt इज प्रोपोर्शनल टू, उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, सो इट इज माइनस के इंटू हाँ ए, राइट? ए, और ए क्या है? एट एनी इंस्टेंट इट इज 4 पाई आर स्क्वायर, राइट? 4 पाई आर स्क्वायर yes. है ना उसका, ठीक है? हम्म. तो dv by dt is equal to minus k into 4 pi r square, and we know it is 4/3 pi r cube, ठीक है? राधा समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। हाँ। So I have dv by dt, rate of change of volume, मतलब वो evaporate हो रहा है ना, k into a, and a is equal to surface area, मतलब 4 pi r square, right? है कि नहीं? yes. And इसका अगर मैं dv by dt निकाला मैंने, so I'll get 4 pi r square dr by dt, करेक्ट है कि नहीं? yes. एंड इंटू हाँ. माइनस के इंटू ए भी तो 4 पाई आर स्क्वायर ही है, राइट? है कि नहीं? ये कट गया, ठीक है? सो डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस के, राइट? फाइन। yes. यहाँ पे yes. मैंने गलती से मैंने आर ले लिया था लास्ट टाइम, ठीक है? तो हाँ. सो डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस के, सो आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी. So this is the radius of the sphere at any time t, correct? And now we have to find the values of this constant k and c, है कि नहीं? So at yes. t is equal to 0, r is equal to 3 mm, correct? है कि नहीं? हाँ. हाँ. r is equal to 3 at t is equal to 0. मैंने अगर वो सब्स्टिट्यूट किया वैसे, so 3 is equal to c आता है मेरे पास, करेक्ट है कि नहीं? हाँ. 3 c is equal to 3 आया मेरे पास में, ये तो 0 हो जाएगा ना, हाँ. और यहाँ पे मुझे तो 3 mm तो डालना पड़ेगा ना, टाइम्स t is equal to 0, है कि नहीं? yes. So I have this thing, c is equal to 3, correct? And then उसके बाद में क्या है? So I know now it is r is equal to 3 minus kt. So at time t is equal to 1, मतलब 1 घंटे के बाद में उसका रेडियस कितना है? 1 घंटे के बाद उसका रेडियस कितना है? r कितना दिया है? कितना हो रहा है उसका रेडियस? माइनस कितना दिया है? 2 2 दिया है, ठीक है? 2 दिया है, सो 2 is equal to 3 minus k, मतलब t की जगह में 1 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, राइट? k is equal to 1, so r yes. instant is 3 minus t, ठीक है? yes. So this is the answer. Fine. yes. So we have for a differential equation of the form dy by dx is equal to py plus q, okay? So where p and q are pure functions of x, okay? So we multiply this whole equation by e raised to p dx, which is the integration factor, and then the solution that we have, we get is y dot e raised to p dx is equal to q dot e raised to p dx plus c is the solution of the given equation, okay? So you just need to remember this thing. You just need to remember this thing, q dot e raised to p dx, okay, plus c, and you have to, and this is y dot e raised to p dx, है कि नहीं? yes. So and if you have this of this form dx by dy plus py plus q,
तो यहाँ पे बस p एंड q आर फंक्शंस ऑफ y, सो यहाँ पे उल्टा कर दिया उन्होंने, ठीक है। अच्छा, so instead of this unsolved problems, I'll just take one solved problem, okay, fine. yes, So dy by dx, okay, x, I'm taking the fifth wala, okay, x dy by dx plus 2y is equal to x square log x. So we have x dy by dx plus 2y is equal to x square log x. X dy by dx plus what? Plus 2y is equal to x square log x. So I have to bring it to the form of dy by dx plus py is equal to q, correct? And this p and q should be functions of only x, correct? So I divide this whole equation by x, I will get dy by dx is equal to plus 2 by x y is equal to x log x, ठीक है, ऐसा मिला मुझे, yes, ठीक है. So my p is equal to 2 by x and my q is equal to x log x, correct? है कि नहीं? So the solution they have given is y dot e raised to p dx is equal to integral q e raised to p dx dx, ऐसे ही दिया है ना उन्होंने, प्लस c, ऐसे दिया है ना, yes or no? yes, q dot e raised to p dx, okay, dot dx plus p, okay. तो अभी मेरे पास में p जो है वो मेरा क्या है, 2 by x dx, right? Sorry. Okay, and is equal to यहाँ पे q क्या है मेरा, x log x e raised to 2 by x dx इंटीग्रेशन प्लस c. So y dot 2 by x dx का इंटीग्रेशन क्या है, 2 log x और e raised to x, yes, e raised to log x square, मतलब y dot x square आ गया यहाँ पे is equal to इंटीग्रल x log x into x square, करेक्ट है कि नहीं, yes, प्लस c. So y dot x square is equal to, यहाँ पे अभी x cube आ गया, so I have to take log x as the first function here, है कि नहीं? So I get x raised to 4 by 4, ठीक है, log x minus x cube by 4 dx का इंटीग्रेशन प्लस c, है कि नहीं? ऐसे ही आएगा, कोई डाउट है इसमें? no, ओके. So y dot square is equal to क्या था मेरे पास में, x raised to 4 by 4 log x raised to 4 by 4 log x minus x raised to 4 by 16, ठीक है. So I can take, यहाँ पे प्लस c है, ठीक है, और यहाँ पे y है, ठीक है. So y dot x square is equal to, I can take x raised to 4 common by 4 common, and then log x minus 1 by 4. 1 by 4, right, ठीक है, plus this is the answer, fine, yes, done. This step, this topic is done, ठीक है, इसमें कुछ खास है. Then we have something called as homogeneous. Homogeneous मतलब क्या, कि जो डिग्री है वो, जो डिग्री ऑफ द इक्वेशन है that is same. मतलब कि कैसे, let us say we have something of the form जैसे x plus y dx
y dy by dx is equal to 0. ठीक है, so y dy is equal to x dx, ऐसा मैं सिंपली लिख सकता हूँ, है कि नहीं? हाँ हाँ दिस एग्जांपल, इस वाला, ये वाला, ठीक है। एंड यहाँ पे x क्यूब y प्लस y एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे मैं इफ आई सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू सम vx, ओके, तो मेरा डिग्री चेंज नहीं होगा, राइट, बट यहाँ पे ये वाला है, ठीक है, 3 and 4 आर नॉट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। सो इन्होंने बोला to solve homogeneous differential equation we substitute y is equal to vx or u is equal to vy, okay. I'll just take one unsolved example, okay. Let me take example number 10. When they have given that y1 is equal to 0, इसका ये मतलब है कि हमको constant of integration में निकालना है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ सो ये होमोजेनियस है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो न्यू मतलब लेट अस से, अगर सपोज मेरे पास ये ऐसा है, dy by dx is some f of xy and g of xy, ऐसा कुछ है मेरे पास, ठीक है। तो इसका जो मतलब यहाँ पे लेट अस से मेरे पास x स्क्वायर y प्लस वाई स्क्वायर एक्स ऐसा है, और यहाँ पे मेरे पास में सिर्फ एक्स वाई प्लस वाई एक्स ऐसा है. सो दिस इज नॉट होमोजीनियस, क्योंकि यहाँ पे नीचे जो डिग्री है वो मेरी 2 है एंड यहाँ पे मेरी डिग्री 3 है, तो ऊपर और नीचे दोनों 3 डिग्रीज रहने चाहिए. समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ ठीक है. सो दिस इज व्हाट दे मीन बाय होमोजीनियस. ओके, ओके so I'm just erasing this part. Okay, I'm taking the 10th वाला प्रॉब्लम. xy dy by dx is equal to x square plus 2y square. अगर मैं xy नीचे लेके गया तो नीचे भी डिनोमिनेटर में भी डिग्री 2 रहेगा, ऊपर भी डिग्री 2 रहेगा. ये सब नो है कि नहीं? हाँ okay. So यहाँ पे dy by dx is equal to x square plus 2y square on xy. Just I'm pausing the recording for a minute. I have to change the nib here. Okay, so here x square plus 2y square upon xy. Now they are saying that substitute y is equal to some bx. Okay, so then we'll get dy by dx is equal to dv by dx plus v. Correct? ऐसा ही आएगा ना यहाँ पे? yes So I'll get dv by dx is equal to, now if I substitute x square plus 2 into v square x square, करेक्ट? ऐसा ही आएगा ना यहाँ पे x into dx. ठीक है. अब यहाँ पे dy by dx की जगह पे मुझे ये सब्स्टिट्यूट करना है, dv plus dv by dx, dv by dx plus v is equal to, ठीक है. तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा अभी, x square I'll take a common 1 plus 2v square upon x square into v. Correct? So this x square gets cancelled. है कि नहीं? And this yes dv by dx plus v is equal to 1 plus 2v square by v. I can take this v यहाँ पे directly. ठीक है? So dv by dx is equal to 1 plus v square by v. 1 plus v square by v. ठीक है, ऐसा आएगा. yes कोई डाउट है इसमें? नहीं तो dv by dv into v upon 1 plus v square, okay, का इंटीग्रल is equal to integral dx plus c. Correct? So half yes log 1 plus v square is equal to x plus c. Correct? yes कोई डाउट है इसमें? नहीं पक्का, राइट? हाँ Okay. So now here we are substituting log of v की जगह 1 plus is equal to
मतलब bx इज इक्वल टू y है, राइट? सो b इज इक्वल टू y by x, करेक्ट? सो y by x होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस c, करेक्ट है कि नहीं? Yes. हाँ. This is, now if I substitute y is equal x is equal to 1, I should get 0. So half log 1 plus y square is equal to x की जगह मैं 1 डाल रहा हूँ, so 1 plus c, ऐसा आ रहा है ये, ठीक है? हाँ. हाँ. So log of 1 plus c square is equal to 2 into 1 plus c. अब यहाँ पे 0 आ रहा है, राइट? तो log of 0 is what? 0 only ना, है कि नहीं? Yes. log of 1 is 0 only, right? log of 1 is 0 only, right? यहाँ पे 0 आ रहा है ना, ये बोल रहा है। हाँ. When x is equal to 1 डालो तो मेरा y 0 आ रहा है कि नहीं? So this is 0. So 1 plus c is equal to 0. So c is equal to minus 1. ठीक है? So the differential equation is, sorry, or the equation is half of log of 1 plus y square by x square is equal to x minus 1. ठीक है? Yes. Is it done? 6.4 is also done. Now if you go to 6.3, okay, they're asking you to find or to separate the variables, okay? Just let me अब यहाँ पे मैं I'm just going to the starting of this chapter यहाँ पे, ठीक है? You understand what is order and what is degree? Degree means that power, na, and order means कितने and पर order means d2y by dx square. Yes. Yes, correct. हाँ, So correct. यहाँ पे Yes. जो सेकंड वाला प्रॉब्लम है, ये वाला जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा डिग्री जो है वो 2 है एंड ऑर्डर इज 3, करेक्ट है कि नहीं? Yes. एंड यहाँ पे भी मेरा ऑर्डर भी 2 है, डिग्री भी 2 है, बिकॉज वी हैव टू सी द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, है कि नहीं? Yes. टू सी द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। अब सिमिलरली यहाँ पे मेरा जो है, मुझे हमेशा ही मतलब नेचुरल नंबर्स में मुझे लाना पड़ता है, करेक्ट? नेचुरल नंबर्स के टर्म्स में मुझे लाना पड़ता है, राइट? डिग्री को। सो 3/2 नहीं चलेगा ना, आई कैन स्क्वायर इट ऑब्वियसली। सो व्हेन आई स्क्वायर इट, इट इज ऑफ द डिग्री 3 एंड ऑर्डर इज 2, ठीक है? Yes. सो हियर अब इस 8 वाला में देखो, यहाँ पे वो लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है? In they cannot bring it to this form, so they are saying that the degree is not defined, but the order is 1 only, ठीक है? Order is 1 only. Okay. Now then you can take this exercise 6.1, ठीक है? मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ है खास, Yes. then there is solved example यहाँ पे, ठीक है? So solved example में they are trying to obtain the differential equation, ठीक है? So what is the standard way to obtain the differential equation? मुझे तो लगता नहीं कि इसका सॉल्यूशन ऐसा है, y square is equal to 4x. So okay, let us say y square is equal to 4x लिया है, ठीक है? y square is equal to 4x लिया, okay, and y dy by dx is equal to 4a, करेक्ट है कि नहीं? Yes. एंड यहाँ पे क्या करता हूँ, y की जगह पे यहाँ पे ओके, सो हाउ डू आई डू इट? या सो 2y dy by dx is equal to 4a. I guess this should be the answer. पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों दिया है उन्होंने, ठीक है? whatever. एंड अब सेकंड वाले इसमें वो लोग क्या कर रहे हैं कि डी स्क्वायर बाय वाई बाय डी एक्स कर उन्होंने किया, तो उनको सीधा 9y मिला आंसर. सो दिस इज देयर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है?
हाँ एंड देन यहाँ पे उन लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, थर्ड वाले इसमें क्या किया है उन्होंने, dy by dx is equal to y plus d square by dx square minus dy by dx. So just trying to find a linear form, ठीक है, or some equation of dy by dx or some d square by dx square, so that they're able to get some solution. Okay, yes. ठीक है. So you can try this. You can try this. मतलब मुझे इतना important नहीं लगा from the exam point of view. That's why uh, I'm just ignoring this thing. But if they ask you, they can ask you in मतलब for objective form, कि find the form the differential equations of all parabolas whose axis is x-axis. तो कैसे find out करोगे? So y square is equal to 4x ऐसे रहेगा ना, right? और y square is equal to minus 4ax ऐसा रहेगा, है कि नहीं? या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस रहेगा या नेगेटिव एक्स एक्सिस रहेगा, मतलब कुछ भी रह सकता है ना. मेरा स्टैंडर्ड जो, अगर सपोज मेरा एक्स एक्सिस मेरा उसका एक्सिस है किसी भी पैराबोला का, ठीक है, किसी भी पैराबोला का अगर एक्स एक्सिस स्टैंडर्ड है, ठीक है, सो y स्क्वायर इज इक्वल टू सम 4ax प्लस सम c, ऐसा ऐसा कुछ रहेगा, राइट? इसका इक्वेशन है कि नहीं? यस और नो, ऐसे रहेगा ना? Yes. हाँ हाँ. ठीक है, तो देन यू विल हैव टू सी. अब तुम्हारे पास क्या रहेंगे कि ऑप्शंस रहेंगे, है कि नहीं? 4 ऑप्शंस रहेंगे, चारों डिफरेंशियल इक्वेशंस के. सो तुम देख लेना कि अगर सपोज ये कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, सो यू नीड नॉट डिड्यूस इट. तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का. तो तुम क्या करोगे कि ये जो है y की वैल्यू, y इज इक्वल टू 4ax प्लस c, ये चारों इक्वेशन में डाल के देखना विच आंसर यू गेट. समझ में आया? हाँ हाँ. हाँ. उन्होंने बोला है कि अभी ये वेरीफाई करो उसको, एग्जांपल 1 देखो यहाँ पे क्या किया, ठीक है. तो फिर क्या करना है, इसमें dy by dx फाइंड आउट करना है और उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. वही किया उन्होंने, वैल्यू सब्स्टिट्यूट आंसर. ठीक है, उन्होंने ये भी बोला है एग्जांपल नंबर 2 में कि ये इसका सॉल्यूशन है क्या, ये चेक करो. तो उन्होंने क्या किया, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट किया, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट किया और उस इक्वेशन में डाला, देखा सेटिस्फाई करता है. ठीक है कि नहीं? So I guess we did not like spend too much time. We have covered most of the, you know, this thing, क्या बोलते हैं, important part. Okay. So in the evening we'll start with application of derivatives. That is also not a big topic. That is मतलब थोड़ा सा बड़ा topic है, but since you are clear with differentiation, then we can finish that thing very soon, and then we can start with something else. Okay. So okay. Okay. Yes. Yeah, I'm just stopping the recording. Wait. So log of x plus 1 upon x square plus 1 dx. Okay. Integral 0 to 1. Correct. So if you follow the Eilert rule, okay, then what is the first function that we should take? Log. Log, right? Log Okay. X. Fine. So we take log of x plus 1 as the first function. Okay. So we get log of x plus 1, ठीक है, tan inverse x, correct, right, minus under root tan inverse x upon x plus 1 dx. This is the answer we get. Yes or no? हाँ हाँ. Fine. ऐसे ही आएगा ना? इसमें कोई डाउट है क्या, राधा? नहीं. Okay. Now let us say we take what do we take here now? What do you substitute here? Let us say
Okay, now this is done, right? तो इसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. I'm just removing it here. Fine. इसको मैं सिर्फ रिमूव कर रहा हूँ. ठीक है. I have to just take care of this part, right? है कि नहीं? Correct? Just take care of this part, right? Okay. So what should I substitute here? Can I substitute x is equal to like tan theta or tan square theta? Let x is equal to tan square theta. Tan theta. Okay, let us say substitute x is equal to some tan theta. Right? So dx is equal to sec square theta d theta. Correct? तो नीचे मेरे पास आएगा थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा. करेक्ट? अपॉन अपॉन व्हाट? tan थीटा प्लस 1. करेक्ट? ऐसा ही है. फाइन. हाँ. अब इसको कैसे इंटीग्रेट करूंगा मैं? थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन tan थीटा प्लस 1. ओके. फाइन. कैसे इंटीग्रेट करो अभी इसको मैं? कोई आइडिया? हेलो. Yes. Okay. So can write it as theta by cos square theta. ठीक है. And this is sin theta plus cos plus 1 plus cos theta into cos theta. ऐसा आएगा ये. करेक्ट है कि नहीं? ऐसे ही आएगा ना. becomes theta upon cos theta into sin theta plus cos theta. करेक्ट? d theta. फाइन. फिर उसके बाद क्या? हेलो. क्या? Yes. अब कैसे करना है बताओ. Now clearly I can take this thing as the first function and this thing as the second function. Correct? Okay. Okay. तो मेरे पास में थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. ठीक है. डी थीटा अगर है. So what is the substitution that you do here? Let us say now this is the first function. Correct? है कि नहीं? This is the first function. Fine. हाँ. तो फिर let if we take let sin theta is equal to some t. Okay. So we get cos theta d theta is equal to dt. Correct? And d theta is equal to some dt by cos theta. Correct? Okay. Just 1 minute. Okay.
So d theta is equal to dt by cos theta, right? है कि नहीं? So अब कैसे करें फिर इसके बाद में? Or let us say I take it on the next page. Fine. I take theta d theta upon मतलब अब जस्ट इग्नोरिंग दिस थीटा राइट नाउ, ठीक है? इसको मैं थीटा को इग्नोर करता हूँ, ठीक है? आई टेक ओनली साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इनटू कॉस थीटा। सिर्फ अगर इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे तो कैसे करूंगा मैं? कोई आइडिया है कि नहीं है? ऐसा कोई एक्सप्रेशन रहता है मेरे पास में तो मैं क्या सब्स्टिट्यूट करता हूँ? इंटीग्रल ऑफ डी थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा ही है ना ये, है कि नहीं? हाँ, फिर मैं क्या सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पे? दिस इज इंटीग्रल ऑफ डी थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, ठीक है, बाय 2 प्लस 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। ऐसा ही है ना ये, करेक्ट है कि नहीं? हाँ हाँ। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे वो 2 ऊपर लेके गया, 2 डी थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन 2 थीटा प्लस 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ऐसा ही है, ठीक है? नाउ लेट अस से 2 थीटा इज इक्वल टू, नाउ लेट 2 थीटा इज इक्वल टू सम t, सो 2 d थीटा इज इक्वल टू dt, करेक्ट है कि नहीं? हाँ। अब इसका इंटीग्रल अगर मैं करने गया तो क्या आएगा मेरा? dt अपॉन साइन t प्लस 1 प्लस कॉस t, ठीक है? इसमें कोई डाउट है क्या अभी तक? नहीं। फिर अभी उन्होंने क्या बोला है कि जब ऐसा फॉर्म में आता है तो हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे? साइन t इज इक्वल टू सम tan व्हाट, क्या बोला उन्होंने? भूल गए क्या तुम लोग? भूल गए क्या? इस फॉर्म में है तो हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं फिर? राधा, क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग? क्या तुमने अभी बोर्ड एग्जाम्स लिखे ना यार, कैसे क्या भूल सकते हैं सब चीज? क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं? ओके, you find me the answer, okay, take indefinite time, find me the answer, okay, I'm stopping the recording now, ठीक है? Otherwise there is no point in doing this exercise, ठीक है?